Morning. Yesterday we had done a very important concept, and the concept was of indices, market indices. So if you remember, कल हमने how to calculate Nifty, how to calculate Sensex, ये एक बहुत amazing फंडा भी किया था, right? So if I ask you in a very very simple terminology, that increase in market cap, क्या था? Capitalization of टॉप 50 स्टॉक्स का अगर तुम परसेंटेज निकालते हो, एक बार फिर से, इफ यू टेक आउट द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स, तो आपको कौन सा फिगर पता चलेगा? इट्स एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ व्हाट? निफ्टी. ओके, सो कल हमने, इफ यू रिमेंबर, वी हैड डन दिस. इफ देयर वाज ओनली वन स्टॉक in the entire index, if there were only two stocks in the indices, and if you remember, in two stocks we had talked about the concept of weights, giving weights to these different stocks. Like अगर आपको याद है, हमने शायद कुछ ऐसे किया था, that 100 रुपीज का शेयर था, वो फिर 160 रुपीज गया था, and फिर how many shares of that A stock, how many shares of that B stock, we had done that. And I said that पहले एक शेयर से स्टार्ट किया, फिर दो शेयर से स्टार्ट किया, and if we were to go up and up and up to how much? 50. Then I had shown you that money control screen. Yesterday we chalked out what was the total market capitalization yesterday. So मान के चलो total market capital, कल हमने क्या एग्जांपल लिया था? Total market capitalization was, ऐसे कुछ तो एक एग्जांपल लिया था ना, एक इसका ही मिला के कितना था? रिलायंस का कितना था? some 47 lakh crores टोटल था वो, 47 lakh crore. So maybe 100 lakh crore ये अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन है निफ्टी का, तो हमने उसको बेस कितना पकड़ा था? इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज द बेस? बेस फिगर वाज 100 ना, एंड अगर न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 102 लाख करोड़, देन हाउ मच वुड बी द न्यू मार्केट? करेक्ट. सो दैट इज हाउ वी डिड अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन yesterday, and we found out what would be the index number for Nifty, और सेम कैलकुलेशन विल गो फॉर Sensex as well. Is this okay? निफ्टी वर्ड कहां से आया था? डू यू रिमेंबर दैट? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का N एंड 50 का IFTY. वैसे सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ विच स्टॉक एक्सचेंज? BSE. सेंसेक्स वर्ड कहां से आया? सेंसिटिविटी इंडेक्स. ओके, इन सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बोला, इफ समवन आस्क्स यू एग्जैक्टली व्हाट इज निफ्टी, व्हाट इज सेंसेक्स, सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन देम इन द मोस्ट सिंपल वर्ड्स? व्हाट इज निफ्टी? कैन आई से इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर? Yes, of entire market or only of a specific sector? Nifty is of a entire market. Why entire market? उसके लिए मैंने आपको कल थोड़ा स्टैटिस्टिक्स में लेके गई थी कि मार्केट में अलग अलग क्या है, बोलो? अलग अलग सेक्टर्स है. एंड इन निफ्टी डू वी हैव ओनली बैंकिंग स्टॉक्स? डू वी हैव ओनली इंफ्रा स्टॉक्स? डू वी हैव ओनली एंटरटेनमेंट स्टॉक्स? नो. इफ यू रिमेंबर यस्टरडे स्क्रीन, there was a combination of stocks from multiple sectors. इसीलिए हमने क्या बोला था? Nifty, can I say it is a representative figure of the entire market. So अगर मैं बोलता हूँ Nifty, everyone answer. If Nifty goes up by 1%, Nifty goes up by 1%, can I say each and every stock goes up by 1%? Each and every stock goes up by 1%? No, that is not a correct answer. But can I say overall market sentiment, overall 1% से ऊपर गया? Can I say that? Yes, overall तो 1% से ऊपर गया does not mean that each and every stock goes up by 1%. So just as an example, yesterday if you know what happened with market, कल देखा क्या market? हमने कल इधर ट्रेडिंग किया था, उसके बाद थोड़ी ना देखता है कोई, पाप लगता है ना. Okay, so originally when we bought one share, कौन सा बाय किया था हमने कल? Kotak Mahindra Bank. Yesterday we had bought, and yesterday market was almost, इसको बोलते हैं market was flat. Flat मतलब neither a big gap up nor a big gap down. It was almost same. If you remember yesterday while we started our trade, it was almost similar. उसके बाद market went up and finally it closed down 30 points, almost 30 points. Nifty went down 30 points. So I was a bit worried, बाप रे, अपने स्टॉक का क्या हो गया क्या पता. We had bought it at what amount, if you remember? Roughly 1277 ना, इतने पे बाई किया था क्या? 1277. Yes.
तो कल क्लोज होते होते आई थॉट दैट पूरा निफ्टी अगर 30% से नीचे गया है, 30 पॉइंट से, सॉरी 30 पॉइंट से नीचे गया है, देन आइडियली अपना स्टॉक भी नीचे जाना चाहिए था. बट अपना एकदम भारी ऐसे रिसर्च करके लिए वो स्टॉक है ना, तो इट डिड नॉट फॉल ऑफ. इट हैज स्टेबलाइज्ड अराउंड 1280. ओके, आई फील दिस इज अ वेरी क्रूशियल फिगर 1280. क्यों 1280? कहां से आया है 1280? फॉर दैट इफ यू हैव लिसन टू टेक्निकल एनालिसिस सेशन वेरी केयरफुली, दैट वाज द सपोर्ट लेवल. अगर आपको चाहिए तो आज थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं क्या आपके लिए इन शॉर्ट व्हाट ही सेड द अदर डे अबाउट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल. ये थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ, जस्ट एक 10-15 मिनट्स में, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई चोज कोटक महिंद्रा बैंक. फ्रैंकली स्पीकिंग, till date I have never bought this stock. I don't know why, but it has never been in my portfolio. But the other day when he was talking, I was just checking some random charts and तब मुझे लगा यार कोटक टेक्निकल एंगल से शॉर्ट टर्म के लिए सही अच्छा लग रहा है. Okay, then why I thought about that, I'll discuss it today only. So if it stays at 1280, if it consolidates, if it goes up from 1280, I'll definitely buy more quantity for that. Okay. So ये पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के बेस के साथ नहीं किया, ये किया था मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे. ओके, देन फंडामेंटल टेक्निकल में क्या फर्क है क्या नहीं है देखेंगे. सो बिफोर वी मूव ऑन टू ऑल दीज अदर कंसेप्ट्स, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कल हमने डिस्कस किया था, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. इज दिस गोइंग टू चेंज एवरी सेकेंड, एवरी माइक्रो सेकेंड? यस. indicates the current value of the company. current value क्यों? एक हमने कल hypothetical example क्या लिया था, if I were to buy out Reliance Industries today, पूरे बाई करना है मुझे कंपनी, तो मुझे मल्टीप्लायर क्या लगाना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा ऑफ मार्केट प्राइस. दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज नथिंग बट द करंट वैल्यू ऑफ द कंपनी. देन वी टॉक्ड अबाउट 3 concepts yesterday. which 3 concepts? large caps, mid caps and small caps. large caps के लिए हमने और एक नाम दिया कल. Which types of companies are these? Blue chip companies. Blue chip companies मतलब जनरली बड़ी वाली कंपनीज है, इसमें सट्टा होने के चांसेस कम है. Whatever movement happens, 99% movement will happen fundamentally. Okay, so these were also known as blue chip caps. ये कल हमने कंसेप्ट नहीं किया था अबाउट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब ये फ्री फ्लोट ये कंसेप्ट क्यों आता है? विल क्विकली गो थ्रू दिस. एक होता है नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, जो हमने कहां पे मल्टीप्लाई किया था? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड दैट इज हाउ वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन. बट आज हम क्या बोल रहे हैं? देखो, मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर इज सेम मार्केट प्राइस पर शेयर, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है. बट इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, व्हाट आर वी सेइंग? नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग. नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग मतलब क्या? So please understand, whenever we talk about any company, abhi let us say company के total number of shares is 100, just as an example. My question to you is, who might hold these 100 shares? कौन कौन अलग अलग लोग हो सकते हैं who can buy these 100 shares? हमने डिस्कस किया है क्लास में. Okay, so moving back, if I were to say that company has in total 100 shares, ये 100 shares कौन कौन होल्ड कर सकता है बोलो? फर्स्टली तो प्रमोटर का होल्डिंग रहेगा इसमें. वेरी गुड. सो प्रमोटर्स विल हैव सम स्टेक इन द कंपनी. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स? पब्लिक में होगा. कौन पब्लिक में कौन कौन आ सकता है? पब्लिक में हम आएंगे. सो पब्लिक में कौन कौन आ सकता है? इसके लिए मैंने आपको कुछ नाम बताए थे ना इन्वेस्टर्स के. इन्वेस्टर्स की कैटेगरीज बताई थी मैंने. व्हाट वाज दैट? RII. व्हाट वाज RII? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. उसके बाद बड़े लोग HNI. व्हाट वाज HNI? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशंस, तो ये कौन कौन था? DII. कौन था DII? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. एंड फिरंगी वर्जन FII. FII का और एक नाम था FPI, फॉरेन
portfolio investors. Okay. So basically promoter एक category हो गई and all these put together will be in another category of investors, outside investors. यहाँ तक भी okay. Now what happens, tell me, can these people change hands day in and day out? मतलब क्या, retail individual investor ने किसी से खरीद लिया, sell किया. Can you remember that word? Number of shares which changed hands in a single day, उसको क्या बोलते हैं आप? Volume. Yesterday when I was teaching you this concept, तो मैं क्या बोल रही थी? Total आज कितने shares? 12,000. अच्छा ठीक है, 12,500, 12,800. Was it increasing every second? That volume concept. Yes. So number of shares जितने trade होते हैं, that is nothing but volume. Quickly tell me, क्या RII HNI को बेच सकते हैं क्या? हाँ. क्या HNI DII को बेच सकते हैं क्या? हाँ. क्या FPI DII से खरीद सकते हैं क्या? हाँ. Why not? क्या ये सब मिलके प्रमोटर से अपना स्टिक खरीद सकते हैं क्या? प्रमोटर का. हाँ. So now there is a differentiating factor here. प्रमोटर क्या बोलता है, मेरे पास जितने भी शेयर्स है, some shares, X number of shares, I would not offer it for general public. I would keep it with myself. क्या था? ओके. सम पोर्शन ऑफ माई शेयर्स आई डोंट वांट टू ऑफर इट फॉर जनरल ट्रेडिंग. ये मेरे पास ही रहेगा जब तक मैं नहीं चाहता. आई विल नॉट सेल इट. ओके. सो क्विकली टेल मी, इज दिस फ्रीली अवेलेबल फॉर ट्रेड? दैट एक्स नंबर ऑफ शेयर्स, वो पोर्शन, इज दैट फ्रीली अवेलेबल फॉर शेयर और इज इट केप्ट विद द प्रमोटर? केप्ट विद द प्रमोटर. सो मान के चलते टोटल 100 शेयर्स है, इसमें प्रमोटर बोलता है मेरे पास 28 शेयर्स है एंड बैलेंस ये सभी मिला के कितने होगा? अभी बोलो. 72 shares balance मिला के. यहाँ तक ओके. Yesterday when we talked about the concept of market capitalization, assume ये जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान के चलो ABC Limited, it's listed on the stock exchange. मान के चलो इसका market price is 85 per share. So if I were to calculate the market capitalization as per yesterday's formula, tell me what do I do? 85 multiplied by what? 100. कल हमने किया नहीं है. 85 multiplied by 100. What is 100? Number of shares. कल किया हमने, आज भी रिवाइज किया. बट व्हेन आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स, फ्रीली फ्लोटिंग शेयर्स, तो अब बोलो 85 मल्टीप्लाइड बाय 72, because these are number of shares which are freely floating in the market, which are available for buy and sell. Is this okay? Yes. So ये 72 जो शेयर्स है इसको हमने फ्रीली फ्लोटिंग बोला है एंड ये फ्री फ्लोटिंग का यहाँ पे कंसेप्ट आता है. इट इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग. इन सिंपल वर्ड्स, फ्रीली फ्लोटिंग मतलब क्या? शेयर्स विच एक्सक्लूड द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स. प्रमोटर्स ने जो स्पेसिफिकली खुद के रखे हैं वो छोड़ के जो होते हैं वो फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं. नाउ व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस कंसेप्ट ऑफ फ्री फ्लोट? ये भी तो लॉजिक पता होना चाहिए ना कि क्यों फ्री फ्लोट ये कंसेप्ट ही क्यों पढ़ रहे हैं अपन. सो व्हेन आई टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग निफ्टी, व्हेन आई टॉक अबाउट कैलकुलेटिंग सेंसेक्स, कल हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा था सबका, ऑल 50 स्टॉक्स वन बाय वन एंड वी हैड चेक द मार्केट कैपिटलाइजेशन. यहाँ तक ओके. बट व्हेन वी कैलकुलेट निफ्टी, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग. ओ समझ में आ रहा है क्या? निफ्टी का कैसे कैलकुलेशन होता है? एक बार फिर से, निफ्टी का कैलकुलेशन कैसे होगा? ऑल 50 स्टॉक्स 1 2 3 डा अप टू 50. यहां पे क्या लिखूं मैं? मार्केट प्राइस ऑफ एवरी शेयर आई हैव रिटन मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखूं? नंबर ऑफ शेयर्स फ्रीली फ्लोटिंग एंड उसका फिर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा उसका परसेंटेज चेंज, दैट बी अ निफ्टी फिगर. इज दिस ओके? पक्का? सो फैंटास्टिक. आज पहला अपना कंसेप्ट लिख लेते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप. फ्री फ्लोट मार्केट कैप. It is calculated as number of shares freely floating. It is calculated as number of shares freely floating multiplied by what? Market price per share. Multiplied by market price per share.
फ्रीली फ्लोटिंग के यहाँ पे आप एक स्टार मार्क लगा सकते हो. एंड फ्रीली फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने? इज इट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्सक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर्स? एक्सक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स. तो वो एक सिर्फ वन लाइनर ऐड करेंगे. फ्रीली फ्लोटिंग के लिए स्टार मार्क का एक्सप्लेनेशन इज शेयर्स विच आर हेल्ड एक्सक्लूसिवली बाय द प्रमोटर्स. शेयर्स विच आर एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय द प्रमोटर्स. थोड़ा चेंज करके बता रही हूं. Shares which are exclusively held by the promoters and are not available for what? General trading purpose. And are not available for general trading purpose. यहाँ तक ओके? क्या कोई प्रमोटर ऐसे बोल सकता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 100? अब इंपॉर्टेंट फंडा है. Total number of shares is 100. Promoter says कि I want to keep 80% of the shares with me. 20% में जितने लोगों को खेलना है उतना खेलो. Allowed or not allowed? Allowed or not allowed? अच्छा, वैसे सेबी का एक रूल चेंज हो गया यहाँ पे. सेबी says that if you are a listed company, okay, then maximum promoters holding should be 25%. उसके ऊपर प्रमोटर होल्डिंग आप नहीं रखेंगे. ओके. एंड ये करने के लिए आपको एक टाइम लिमिट भी दिया जाता है पोस्ट लिस्टिंग. सो आई हैव बीन गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ डीमार्ट. डीमार्ट याद है आपको कौन सा था? आई टोल्ड यू अबाउट दैट 300 रुपीज आईपीओ गॉट लिस्टेड एट अराउंड 600. इफ यू रिमेंबर डे वन मैंने इसके ओनर के बारे में मिस्टर दमानी, इनके बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था. नाउ व्हाट हैपेंड विद डीमार्ट आई विल टेल यू. डीमार्ट का शेयर issue price was around 300, listing price was around 600, and the market price was roughly trading at around 1200 to 1300 ka range. Okay. One day I was checking the market and suddenly I saw that DMart is crashing today. It was just going down and down and down. Almost 3-4-5% से नीचे गिर गया था. Single day fall. I was wondering यार क्या हो गया? इतना अचानक शेयर गिर क्यों रहा है? So I tried to check whether any news was there on the stock or not. And at that point of time I found that डीमार्ट में almost 3% of the shares of the promoters were sold by the promoters. 3% of the total number of shares. अब total number of shares लाखों करोड़ों में हो सकते हैं कंपनी के, एंड 3% अचानक से सेल कर रहे. बेसिक इकोनॉमिक्स क्या हो जाता है? बेसिक इकोनॉमिक्स में ह्यूज सप्लाई कम्स इन, डिमांड उतना है नहीं, मार्केट प्राइस इज गोइंग टू फॉल. So is it a good sign that promoter sells off his holding or a bad sign? सोच के बोलो. Promoter is selling off his shares. Bad sign. Why? Why would he sell his own company share? See, if I am not believing in my company shares, who is going to believe in my company? Okay. Generally promoter ज्यादा stake अपने पास क्यों रखना चाहता है? दो चीजों के लिए. ध्यान से सुना. दो चीजों के लिए. नंबर वन, could it be decision making purpose? Those who are from commerce background, everyone knows that to take a big decision you need to pass resolutions. मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऐसे अलग अलग रेजोल्यूशंस पास करने पड़ते हैं. रेजोल्यूशन में अपने पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है उतनी अच्छी बात है. सो नंबर वन, टू मेक क्विक रेजोल्यूशंस, प्रमोटर माइट से दैट आई नीड मोर परसेंटेज ऑफ शेयर्स विथ मी. नंबर वन. नंबर टू, सो ये हो गया अपना डिसीजन मेकिंग के लिए. करेक्ट. पॉसिबिलिटी नंबर टू क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी नंबर टू बोलता है, प्रमोटर बोलता है, आई नो माई कंपनी इन एंड आउट, आई नो द पोटेंशियल इन माई कंपनी, आई नो दैट दिस कंपनी कैन ग्रो एट दिस स्पेस. सो अगर मैं खुद ही मेरे ग्रोथ स्टोरी में बिलीव नहीं करता हूं तो कौन करेगा? ओके. सो इफ ही वॉन्ट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम हिज ओन कंपनी, profit higher and higher from his own company, can I say he would love to increase the share in his company or decrease the share in his company? He would love to increase the stake in his own company. क्या तक भी ओके. अब जब प्रमोटर खुद ही फटाफट अपने शेयर्स बेचते जा रहा है, अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. Here somewhere people might believe that प्रमोटर को ही खुद को अपने कंपनी के बारे में कुछ तो पता है, wherein he knows कि अपना अभी कुछ ठीक नहीं है. So better way we sell off and quit. क्लासिक एग्जांपल सत्यम अगेन. सत्यम शेयर होल्डिंग. अच्छा, ये रूल जो है ना 25% मैक्सिमम होल्डिंग, ये बहुत पुराना रूल नहीं है. इट्स आई गेस बेयरली 3-4 years डाउन द लाइन. सिर्फ 3-4 साल पहले ये रूल आया. पहले तो 50%, 80%, 100% तक की होल्डिंग हो जाती थी प्रमोटर्स की.
ओके 100 नहीं होगा, मतलब अदरवाइज वो लिस्ट ही नहीं होगा, 100 थोड़ा फ्लो में ज्यादा हो गया, ओके, बट इट इज टू बी वेरी हाई, ओके. सो सत्यम के केस में भी ऐसे हुआ था दैट मोर देन 50% शेयर्स वर हेल्ड बाय द प्रमोटर्स. एंड जब रामलिंगन राजू, heard this name, Ramlingan Raju, who was the promoter of Satyam, when he came to know that अब ये कंपनी का थोड़ा गड़बड़ चालू होने वाला है, बिकॉज फ्रॉड इतने ज्यादा कर रखे हैं, अब ये शायद बाहर आ सकते हैं फ्रॉड्स, सो बेटर वे वी कट डाउन ऑन आवर स्टेक एंड द परसेंटेज होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स स्लैश्ड फ्रॉम 52% टिल बेयरली 2 or 3% टुवर्ड्स द एंड ऑफ सत्यम. अब जब प्रमोटर स्टेक सेल करने लगता है, इसीलिए वापस से लास्ट टाइम रिपीट करती हूँ, कैन आई से इट्स अ साइन दैट मे बी प्रमोटर हिमसेल्फ नोज दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द कंपनी एंड ही वांट्स टू रिड्यूस हिज स्टेक. क्वाइट पॉसिबल. यहाँ तक ओके. 3% से जब नीचे गिर गया शेयर, मैंने कहा यार तो बहुत बड़ी कुछ तो बात हो गई शेयर. सो देन आई ट्राई टू सर्च एंड देन आई फाउंड आउट दैट द प्रमोटर्स होल्डिंग वॉज रफली अराउंड 78% इन द कंपनी. प्रमोटर का खुद का होल्डिंग ही 78% था. अब उनको क्या करना था? दे हैड टू कम डाउन टू 75%. वाई? अभी सेबी का रूल बोला ना, अभी जस्ट सेबी का रूल बोला, मैक्सिमम प्रमोटर अपने कंपनी में कितना होल्ड कर सकता है? 25%. ओके, अच्छा उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ओहो हो, उल्टा 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 बोल दिया, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया. वेट, 25% एटलीस्ट हैज टू बी हेल्ड बाय अदर्स बोलना है मुझे. एग्जैक्ट उल्टा बोल दिया. एटलीस्ट 25% ऑफ द शेयर्स हैव टू बी हेल्ड बाय अदर्स. जो अपना वो मैंने ऐसे कुछ, हाँ ये ड्रॉ किया था ना, उल्टा बोल दिया मैंने यहाँ पे. सो ये इधर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25 तो होना ही चाहिए बाय अदर्स. एंड प्रमोटर के पास, खुद के पास मैक्स टू मैक्स 75, मैक्स टू मैक्स, उसके ऊपर नहीं जा सकता है प्रमोटर. व्हाट हैड हैपेंड विद डीमार्ट? टेल मी. डीमार्ट में they had 78. So he had no choice but to bring it down to 75. इसके लिए क्या करना पड़ा? 3% शेयर्स बेचने पड़े. यहां तक भी ओके. अब ये थोड़ी ना सबको पता होगा. See again understand the basic need of our batch, कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है लोगों को. न्यूज में सिर्फ क्या देख रहा है? 3% शेयर बेच दिए. लोग पागल जैसे बेचे शेयर्स उस दिन को, एंड द शेयर क्रैश्ड लाइक एनीथिंग. I said let's not sell just because promoter is selling. There might be some news, and when I tried to search the news, I found this news that promoter complies with SEBI norms, holding back to 75% criteria. मैंने कहा very good, ये तो compliance हो गया लॉ का. I bought in more 100 shares. I sold it within next 2-3 months, and I profited almost 10% in 2 to 3 months. 10% 2 या 3 महीने में नहीं मिलता ना बैंक में. एंड ये मैंने कुछ भयंकर एनालिसिस किया था, कुछ टेक्निकल एनालिसिस, ये फंडामेंटल ऐसे कुछ किया. ये सिर्फ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग था. ये न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग था, न्यूज बेस्ड ऑन माय बेसिक कॉन्सेप्ट कि अच्छा इस वजह से शेयर प्राइस फॉल हो गया. सो इज दिस क्लियर? प्रमोटर होल्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रमोटर आइडियली अपने शेयर्स ज्यादा ज्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेगा, बट ही माइट हैव टू रिड्यूस हिज शेयर होल्डिंग फॉर कंप्लायंस ऑफ लॉ. और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूं. डू यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेजिंग ऑफ शेयर्स? प्लेज करते हैं शेयर्स को. कॉन्सेप्ट सुना है कभी? प्लेज मतलब क्या होता है? मॉर्टगेज सुना है? मॉर्टगेज क्या किसके ऊपर होता है? हाउस, लैंड, रियल एस्टेट. ओके, जैसे हाउस हम मॉर्टगेज करते हैं वैसे हम शेयर्स को प्लेज करते हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, वर्ड अलग है. ओके, so what could happen essentially? Tell me. अगर मैंने शेयर्स प्लेज पे रखे तो इन सिंपल वर्ड्स आई विल गेट लोन अगेंस्ट दैट. अब क्या हो रहा है देखो, प्रमोटर खुद के ही शेयर्स प्लेज पे रख रहा है. ओके, व्हाट हैपेंस इन सम कंपनीज? प्रमोटर खुद के ही शेयर्स प्लेज पे रख रहा है एंड लोन ले रहा है कंपनी के लिए. अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत बुरी बात है. व्हाई? अंडरस्टैंड. Ideally, अच्छा, taking a loan is not that bad, but can't the company take loan against any other assets? कंपनी के पास खुद का लैंड होगा, कंपनी के पास अपना बिल्डिंग होगा, कंपनी के पास अपने कोई अदर एसेट्स रहेंगे, लाइक मशीनरी रहेगा. It might be a sign that banker is not giving you loan against any of these assets, number one, और इन सभी एसेट्स के अगेंस्ट ऑलरेडी लोन ले चुके हो आप. अब आपको लोन तो चाहिए
सिक्योरिटी देने के लिए कुछ है ही नहीं बचा हुआ. सो क्या दे रहे हो आप खुद के शेयर्स दे रहे हो, अपनी बेस्ट चीज आप दाव पे लगा रहे हो, एंड देन यू आर एक्चुअली टेकिंग अ लोन. इट्स अ वेरी बैड साइन. So we as investors, can we understand how much percentage of shares are pledged by the promoters? ये भी तो open information होता है. You can find it on BSE, NSE, money control also. कि how much percentage of shares are pledged by the promoters. ऐसे कंपनी से दूर रहे तो ज्यादा बेटर है. Why understand? 1% अगर कंपनी लोन रिपे नहीं कर पाती है, then what will happen? Loan will, the bank will take away their shares. एंड देन ऑफ कोर्स मतलब लोन डिफॉल्ट हो गया तो आपके शेयर्स वापस ले जाएंगे बाय द बैंक. सो अब क्या हो गया, देखो प्रमोटर का स्टेक और भी नीचे हो गया. प्रमोटर क्या बोल रहा है, ठीक है नो प्रॉब्लम, वैसे कंपनी डूब गई तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. क्यों फर्क नहीं पड़ता है पता है आपको? थोड़ा सा बाउंसर गया ना ये वाला पॉइंट, ध्यान से सुनो. आई एम द प्रमोटर, इनटू ब्रैकेट आई एम अ फ्रॉडस्टर. फॉरेंसिक के एंगल से देख रही हूँ थोड़ा सा. आई एम अ प्रमोटर, इनटू ब्रैकेट आई एम अ फ्रॉडस्टर. अब मैं क्या कर रही हूँ, कंपनी के जितने भी एसेट्स थे सब मैंने एज अ कोलैटरल रख के या फिर एज अ सिक्योरिटी रख के आई हैव टेकन अ लोन. आइडियली व्हाट शुड आई बी डूइंग विद दिस लोन मनी? आई शुड बी यूजिंग इट फॉर माई बिजनेस पर्पज. बट इनटू ब्रैकेट में कौन हूं? फ्रॉडस्टर हूं ना. सो एम आई यूटिलाइजिंग दिस मनी फॉर माई बिजनेस पर्पज, और इसको एक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, एम आई साइफनिंग ऑफ फंड्स. साइफनिंग इन सिंपल वर्ड्स चोरी कर रही हूं मैं. साइफनिंग ऑफ फंड. साइफनिंग ऑफ फंड मतलब कंपनी से पैसे निकाल के खुद की जेब भर रही हूं. ओके, ये कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, तो पूरा फ्रॉड के डिस्कशन में घुस जाएंगे फिर हम. बट ऐसे होता है, ऐसे बहुत प्रमोटर्स करते हैं. साइफनिंग ऑफ फंड्स. क्लासिक एग्जांपल अगेन सत्यम. लोड्स ऑफ फंड्स वर साइफन्ड ऑफ. क्लासिक एग्जांपल पीएनबी. क्लासिक एग्जांपल आपका पीएनबी का काउंटर विजय मल्ल्या. व्हाई नॉट? ये सभी तो इतनी बड़ी कंपनी बंद होने के पीछे वन ऑफ द मेजर रीजंस इज साइफनिंग ऑफ फंड्स. मतलब मैं कुछ झूठ मूठ के बिल्स दिखा के कुछ भी करके मैं कंपनी से पैसा बेसिकली बाहर निकालती हूँ. अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना. आप बोलेंगे मैडम आप खुद की कंपनी बंद करवाओगे, आपने पैसे डाले ना कंपनी में. अंडरस्टैंड बेसिक मैथ्स. आई स्टार्टेड द कंपनी विथ अज्यूम 10 लाख रुपीज. क्या तो ओके, आई स्टार्टेड द कंपनी विथ 10 लाख रुपीज. I have taken a loan for what? For running of the company. अब लोन के पैसे कंपनी के लिए यूज कर रही हो, खुद की जेब भरने के लिए यूज कर रही हूँ. खुद की जेब भरने के लिए यूज कर रही हूँ. कैसे? वो अलग अलग फ्रॉड के तरीके होते हैं. अब ये फ्रॉड करते 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 मैंने ऑलरेडी 8 लाख तो बाहर निकाल ही लिए. मेरे जेब में 8 लाख तो ऑलरेडी वापस आ गए. एडिशनल एक लोन लेकर रखा है अगेंस्ट व्हाट? शेयर्स. अगेंस्ट माई शेयर्स जो मैंने प्लेज किए थे. कितने का लोन है? 5 लाख का लोन है मान के चलो. मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, रिपे नहीं करते. क्यों रिपे नहीं किए तो क्या हो जाएगा? They'll take off my shares. ओके, ये 5 लाख तो मेरे पास आ गए ना, लेकिन यूज करने के लिए. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गुड. आई स्टार्टेड द कंपनी विथ 10 lakhs. आई अर्नड 13 lakhs with not ethical means, with obviously unethical means, with fraudulent activities. Okay, so I am not saying that pledging of shares is fraudulent. I'm not saying that. But the moment promoter is pledging his own shares, is it a good sign or is it a bad sign? It's a bad sign. I am not saying it's a fraud. Okay, but ये bad sign for sure है. So आपको ये कहाँ पे पता चल सकता है कि यार कितने shares किसके पास है? You want to see that? अपना favorite website? Money Control. क्या हो गया इसको? ओके, अपना मनी कंट्रोल का वेबसाइट आगे है. लेट अस टॉक अबाउट कोटक ओनली. सो इफ आई टॉक अबाउट द सेम कंपनी, कैसे करना है अब आप मुझे बताओ. ये अपना होम स्क्रीन आ गया. अब क्या करूं मैं? कैन यू सी इट? होम स्क्रीन आ गया. हाउ डू यू गो टू कोटक? इधर आपको सर्च कोड दिख रहा है. आई जस्ट टैप ऑन दैट एंड अबाउट डू आई टैप? कोटक आ गया पहला ही.
Kotak Mahindra Bank, yes, I just tap on that. That is the latest price. कल कितने में बाय किया था? 1277 में बाय किया था कल हमने. कितना है अभी? 1280. 3 रुपए से ही प्रॉफिट है. इंटू 5 15 इंटू 5 मतलब 15 रुपए होगा ना. एक चाय तो मेरे निकल जाएगी फॉर श्योर, ब्रोकरेज वगैरह हटा के. ओके, सो 1280 इज द करंट मार्केट प्राइस. यहाँ तक ओके. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इफ आई वर टू चेक किसके पास कितने शेयर्स है, प्रमोटर के पास कितने हैं, अदर इन्वेस्टर्स के पास कितने हैं, तो दिस लेफ्ट पॉइंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इस लेफ्ट वाले इसमें से मैंने आपको क्या पढ़ाया ऑलरेडी? कॉर्पोरेट एक्शन. इफ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डन दिस. इसमें क्या क्या आता था? बोनस, डिविडेंड, राइट्स, एजीएम, ईजीएम, ये सभी पॉइंट हमने कॉर्पोरेट एक्शन में किया. एंड टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? शेयर होल्डिंग. अरे ये सब दिया रहता है. ओके, वी जस्ट हैव टू टैप ऑन दिस शेयर होल्डिंग नाउ. सो लेट अस अंडरस्टैंड कोटक महिंद्रा बैंक में किसके पास कितने शेयर्स है. ओके, सो नाउ हियर यू कैन सी सबसे पहले क्या लिखा है देखो, शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप. नया टर्म आ गया. अभी तक क्या बोल रहे थे? प्रमोटर. अब प्रमोटर एक थोड़ी ना अकेला इतना बड़ा हैंडल करेगा. सो वी ऑल्सो नाउ टॉक अबाउट प्रमोटर ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नाउ लेड द कंपनी. ओके, अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो यू कैन चेक दिस शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरीके से उन्होंने बाइफरकेट किया है. सबसे पहले बोला इंडियन. ओके, वेट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, क्या किसके बारे में लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स. इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? विजिबल ना? कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर कौन कौन है यहाँ पे दिया है. कौन कौन सी मेजर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर है देखते हैं. इंडियन कैटेगरी कौन सी है? ओके, अच्छा बिफोर इंडियन सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप. लेट्स अंडरस्टैंड द बाइफरकेशन ऑफ शेयर होल्डिंग. सबसे पहले प्रमोटर ग्रुप के पास कितना है. उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना है. पब्लिक में कौन कौन आएगा? बहुत अलग अलग लोग आ सकते हैं ना. RII, DII, HNI सभी आएंगे. एंड C is shares held by custodians and against which depository receipts have been issued. CA students, if you know, there is something known as ADR, GDR. ऐसे कुछ याद है? आता है ना इंटरमीडिएट पे. ADR क्या है? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. GDR क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. ये थोड़ा सा हाई फंडू कॉन्सेप्ट है. इग्नोर राइट नाउ, इग्नोर. वी आर इन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, सो थोड़ा सा इग्नोर करो. एनीवेज कोटक के लिए सब डैश 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 ही है. So that's okay. And total आता है A plus B plus C. यहाँ तक okay, right? So now if you see here, ये 100 क्या होने वाला है? This is going to be the total percentage of holding. And total अगर आप देखेंगे यहाँ पे, see number of shareholders है. So are we talking about people or institutions here? Number of shareholders मतलब number of people. And यहाँ पे क्या लिखा है? Total number of shares. Now this is a very amazing figure. सबसे पहला वाला प्रमोटर होल्डिंग का, प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप. कितने शेयर है ये? 57 crores, 18 lakhs, 41,408, जिसमें से मेरे पास 5 शेयर्स है. आर यू अंडरस्टैंडिंग कितने छोटे हम शेयर मार्केट के सामने. ये कितने? 57 crore शेयर्स. एंड कितने लोगों ने मिलके ये होल्ड किए? 9 people. 9 people ने मिला के 57 crore शेयर होल्ड किए. अच्छा, ये भी किसके? प्रमोटर्स के. मेरा 5 तो इसमें आता भी नहीं है. क्यों? ये प्रमोटर होल्डिंग के बारे में देख रहे हैं ना हम पहले. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कितना है और प्रमोटर का क्या है. देखो ये 9 people होल्डिंग दिस मेनी शेयर्स. अब मैं नीचे जाती हूँ, फॉरेन में तो संबंध नहीं है. पब्लिक शेयर होल्डिंग में नंबर 1 क्या है बोलो? इंस्टीट्यूशन. सो वी ऑल्सो डोंट फॉल इनटू दिस कैटेगरी. इंस्टीट्यूशंस के नीचे क्या आएगा? नॉन इंस्टीट्यूशन. नॉन इंस्टीट्यूशन में आ गया इंडिविजुअल. ओके, इंडिविजुअल में जैसे हमने कल वो 2 lakhs का क्राइटेरिया बोला था, वो IPO के लिए मेनली आता है. बट यहाँ पे अगर मैं मेनली अपनी कैटेगरी चेक करूं, सो इन्होंने दे हैव बाइफरकेटेड समथिंग लाइक दिस. इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉमिनल शेयर. नॉमिनल शेयर इज लाइक फेस वैल्यू. नॉमिनल शेयर कैपिटल मतलब क्या? फेस वैल्यू जैसा शेयर कैपिटल इन एक्सेस ऑफ ₹1 lakh. ओके, सो ये अगर कोई है तो ये भी यहाँ पे आ गया. सब टोटल आ गया. टोटल पब्लिक होल्डिंग आ गया. ठीक है, अदर्स. अच्छा, अदर्स में भी हम आ सकते हैं, व्हाई नॉट. ओके, सो ये सभी मिला के अभी ये रेशो थोड़ा सा देखो. ये रेशो अगर आप देखेंगे तो 1,66,998 मिला के कितने का होल्डिंग है. परसेंटेज होल्डिंग अब आपको समझ में आ रहा है.
Huge number of people holding so less shares and so less number of people holding so many shares. Okay, that is the difference between promoter holding and other holding. Okay, so mainly if you check here, अब important फंडा क्या आता है, ध्यान से सुन ला. 9 people are holding so many shares is not that important for us. प्रमोटर ग्रुप में यहाँ पे टोटल होल्डिंग कितना दिख रहा है? ओ माय गॉड, यहाँ पे होल्डिंग कितना दिख रहा है? 30% दिख रहा है अभी तक. It's greater than 25%. Okay, so there might be some reason for this as to why they are holding more than our threshold of 25. So, हाँ, अरे वापस से मैं उसी पे आ गई, सेम फंडा पे आ गई. चलो, सो प्रमोटर के लिए 75 है, अदर्स के लिए 25 है. आज क्या हो गया, मुझे उल्टा क्यों बोल रही हूँ मैं इसके लिए? ओके, एनीवेज, सो 30% इज हेल्ड बाय प्रमोटर कंपनीज, ग्रुप मिला के पूरा. अदर्स 0.03, दैट्स नॉट मच. फॉरेन का कुछ भी होल्डिंग नहीं है, सो अपना FII कैटेगरी इज एज गुड एज जीरो. राइट. उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग, पीपल लाइक यू एंड मी. म्यूचुअल फंड्स के पास कितना है? 6%. बैंक्स, अदर बैंक्स कितना होल्ड करते हैं? 0.19%. दैट्स ओके. ओके, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, अब ये थोड़ा और भी डेंजर कंसेप्ट है, इसमें अभी घुसना नहीं अपने को, बट क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स है 39%. सो अदर्स मिला के कितना हो गया देखो? 48%. प्रमोटर होल्डिंग कितना था? रफली 30%. अदर का कितना था? 48% है. एंड ये सभी मिला के टोटल पब्लिक शेयर होल्डिंग, ऑल दिस पुट टुगेदर कम्स अप टू 100%. यहां तक ओके क्या? ये शेयर होल्डिंग कैसे देखते हैं, इतना तो समझ में आया? अरे ये सुनो, अब देखो, आई एम स्टिल हियर ओनली. कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स है, क्या है? आई एम जस्ट स्लाइडिंग अप. क्या दिख रहा है यहाँ पे? शेयर्स प्लेज्ड और अदरवाइज एनकम्बर्ड. एनकम्बर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट लोन लिया है. एनकम्बर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट लोन लिया है. सो शेयर्स प्लेज कितना किया? अभी यही कंसेप्ट पढ़ रहे थे ना. हाउ मच परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैव बीन एक्चुअली प्लेज्ड. कितना है देखो? कितना प्लेज्ड है? 0. गुड साइन, बैड साइन? गुड साइन. नन ऑफ द शेयर्स हैव बीन प्लेज्ड बाय द प्रमोटर्स. यहां तक भी समझ में आ रहा है? पक्का? यस. शैल वी चेक एनी अदर कंपनी जिसमें आपको चेक करना है प्लेज्ड है कि नहीं है? टाटा मोटर्स. अब आप बोलेंगे कैसे चेक करूं मैं? टाटा मोटर्स यहां पे सर्च किया, ओके, आई विल कम टू दैट. दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ही इज आस्किंग मी, लोन कौन से वैल्यू के अगेंस्ट मिलता है? फेस वैल्यू के ऊपर या मार्केट प्राइस के ऊपर? लॉजिकली शेयर्स मार्केट वैल्यू के ऊपर. बट डू यू थिंक दे वांट टू गिव ऑन एंटायर? जैसे मान के चलो मार्केट प्राइस इज 1000. ओके, मार्केट प्राइस इज 1000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे वांट टू प्लेज इज लेट अस से 50. जस्ट एज एन एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेते हैं. सो टोटल कितना आ गया बोलो? 50,000 is the market value of the shares. If you all are the bankers and if I am the promoter, I am wanting to pledge shares worth rupees 50,000. आप देंगे 50,000 का लोन मुझे? उसमें कुछ कटौती करनी पड़ेगी ना. I'll have to use some margin. Many a times in stock market terms that is known as a haircut. Haircut बोलते हैं इसको. Haircut मतलब क्या है? जो additional value उसको कट कर दो. जैसे इवन इफ यू गो टू अ बैंक फॉर अ जनरल लोन, होम लोन है, व्हीकल लोन है, उसके लिए भी पूरे का मिलता है क्या लोन? नहीं, नेवर. दे विल नेवर मूव अप एज कंपेयर टू 80%. जितना भी वैल्यू उसका 80% के ऊपर लोन नहीं देंगे आपको. ओके, सो जस्ट एज एन एग्जांपल, इफ यू आर बाइंग अ हाउस ऑफ 1 crore, मैक्सिमम लोन आपको कितना मिलेगा? 0.8 CR का लोन आपको मिलेगा. सेम गोज अहेड विद शेयर्स कंसेप्ट. इनफैक्ट यहाँ पे 80% तक भी नहीं जाएंगे, जनरली 50% तक जाएंगे वो. They want to have lesser and lesser risk. Okay, so that will be generally of market value only, but with a big haircut, with a big percentage. इसीलिए तो वो बहुत बड़ा मार्जिन रखते हैं ना. 50% का तो मार्जिन रख दिया. एंड वो भी अगर उनको लगता है वो भी रिस्क है, they might keep a higher margin also. Okay. So going back to our example, टाटा मोटर्स चेक कर रहे थे. कैसे जाओ? अभी देखो टाटा मोटर्स तो आ गया. What next? Now where do I go? Quickly. शेयर होल्डिंग. शेयर होल्डिंग में कहां पे जाओ? अभी ये अपना टेबल आ जाएगा शेयर होल्डिंग का.
अच्छा अदर्स में आ रहा है, ओहो देखो यहाँ पे आ गया, कैन यू सी दिस, शेयर्स प्लेज्ड कितना है 4.81%, शेयर्स आर प्लेज्ड बाय द प्रमोटर्स, नॉट अ गुड साइन। उस दिन शायद हमने गेस्ट सेशन में लिया भी था, हमने भी डिस्कस किया है, व्हाई नॉट। टाटा मोटर्स एंड जेएलआर जैगुआर लैंड रोवर्स, मैंने बोला था ना जेएलआर का बहुत बड़ा लॉस का फिगर सामने आया, एंड मे बी जस्ट टू पंप इन मोर एंड मोर फंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड देयर शेयर्स। सो इज इट सो सिंपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हैव प्रमोटर्स रियली प्लेज्ड सम परसेंटेज ऑफ देयर शेयर्स और नॉट? यस, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग कि ऐसे कुछ होता है। Clear it here? Yes. So if you want to write down one more concept of promoters pledging shares. Promoters pledging shares. Dash क्या होता है इसमें बोलो? Promoters take a loan against their own shares. और प्रमोटर्स टेक लोन अगेंस्ट शेयर्स हेल्ड बाय देम, ये ज्यादा बेटर है। प्रमोटर्स टेक अ लोन अगेंस्ट शेयर्स हेल्ड बाय देम। ओके क्लियर? यस। एंड कहां पे चेक करना है ये भी बताया मैंने, शेयर होल्डिंग वाले टैब में मिल जाएगा आपको। Oh, that's a different question. जैसे हमने कल 5 शेयर्स लिए, एंड इफ आई वांट अ लोन, कैन आई गो टू द बैंक एंड कैन आई से बैंक मुझे ना लोन चाहिए? कौन सा वाला लोन? पर्सनल लोन। क्यों? क्योंकि अगर मुझे व्हीकल लोन चाहिए, व्हाट विल बी द चार्ज विल बी क्रिएटेड अगेंस्ट माय व्हीकल। होम लोन चाहिए तो अगेंस्ट माय होम। ओके, अब मुझे चाहिए क्या? एज एन इंडिविजुअल आई वांट अ लोन फॉर पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस का जनरली इट्स एन अनसिक्योर्ड लोन। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अगर भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलती है ठीक है वी आर रेडी, तो भी पर्सनल लेवल पे शेयर्स प्लेज करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डोंट अलाउ इट पर्सनल लेवल पे, नॉट प्रमोटर होल्डिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड अगर भी किसी ने दिया तो कैन वी अंडरस्टैंड दिस? यहाँ पे जैसे हमने एक डिस्क्लोजर देखा, वैसे डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा क्या? नीचे कहीं पे मान के चलो मैंने वो 5 शेयर्स के अगेंस्ट कुछ प्लेज रखा है, तो यहाँ पे डिस्क्लोज होगा? नहीं। व्हाई? व्हाट इज द हेडिंग? शेयर्स विच आर प्लेज्ड, बट जनरली ये प्लेज किसके वाले अपन बात कर रहे हैं? प्लेज्ड बाय प्रमोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक एनी अदर क्राइटेरिया विल कम अप हियर। ये कौन आ गया? अच्छा, दिस इज एज अ टोटल परसेंट, वो परसेंटेज सिर्फ ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, बट बिकॉज हियर इट्स 0 ओनली ना, सबको 0 ही है, सो एज अ परसेंटेज टोटल वो आ गया है। मेनली इट इज 4.81 ओनली। सो ये डिस्क्लोजर होना भी बहुत डिफिकल्ट बात है, एंड जनरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल नॉट अलाउ। हु कैन गिव यू लोन अगेंस्ट योर ओन शेयर्स? ब्रोकर। कल मैंने ऐसे कुछ बोला था क्या आपको? व्हेन आई टॉक्ड अबाउट वन टाइप ऑफ ऑर्डर, जिसमें मैंने बोला था एक एनआरएमएल ऑर्डर होता है एंड एक कुछ सीएनसी कैश एंड कैश था। एनआरएमएल में क्या होता है? मैं फर्स्ट आई कैन बाय द शेयर्स एंड देन आई कैन पे हिम मनी। याद है कल का अपना डिस्कशन? कल मैंने एनआरएमएल ऑर्डर ही प्लेस किया था, पहले मैं शेयर्स तो बाय कर लूं, बाद में पैसा दूंगी उसको। हाउ डज माई ब्रोकर बिलीव मी? बिकॉज माई डीमैट इज विथ हिम, एंड ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर विल मार्क अ लीन अगेंस्ट माई शेयर्स, चार्ज क्रिएट करेगा एंड बोलेगा रचना तूने पैसे नहीं दिए, विल सेल ऑफ योर शेयर्स एंड विल गेट बैक आवर मनी। सो जनरली ये जो लीन होता है, लोन होता है, दैट विल बी गिवन बाय द ब्रोकर ओनली, जनरली टू द कस्टमर। ओके, यस। एनी अदर डाउट? कैन वी मूव ऑन? यस। चलो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड एग्जीक्यूशन, कल तो मैंने आपको ये पूरा दिखाया भी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कैसे होता है। ये भी आपको सबको पता है ना, बाय नाउ आई एम श्योर यू नो दिस। जो हमने टाइमिंग बोला है 9:15 to 3:30, मंडे टू फ्राइडे चालू रहेगा, एंड ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग, ओनली 5 days वीक वर्किंग है इन शॉर्ट, एंड पब्लिक हॉलीडेज को भी छुट्टी रहता है। ओके, सो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं आज पब्लिक हॉलीडे तो आज मस्त घर पे बैठ के ट्रेडिंग करेंगे, होगा या नहीं होगा पॉसिबल? नहीं, पब्लिक ट्रेडिंग इज हॉलीडे फॉर मार्केट एज वेल। ओके, अच्छा, एक जस्ट अचानक से याद आया, आई थॉट ऑफ जस्ट टेलिंग इट टू यू। जनरल मार्केट आवर्स अभी बोला है मैंने 9:15 to 3:30,
बट डू यू नो दैट पूरे साल में एक दिन शाम में मार्केट ओपन होता है, लक्ष्मी पूजन. ओके, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे इसको बोलते हैं आप मुहूर्त ट्रेडिंग. ओके, इसका नाम ही दिया जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग. एंड लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त पे रफली 1 आवर का ट्रेडिंग सेशन होता है, रफली. इसमें भी प्री ओपनिंग सेशन होता है और अलग से प्री ओपनिंग सेशन होगा इज्जत से, फिर पूरा 1 आवर ऑफ ट्रेडिंग होगा. एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु बिलीव दैट दिस इज लाइक अ शुभ मुहूर्त ना. सो पीपल विल बाय शेयर्स, जैसे शगुन में बाय करते हैं शेयर्स वैसे. सो पीपल विल स्टार्ट बाइंग ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग. ओके, सो दिस इज द ओनली सिंगल डे in the entire year that market will open in the evening and it's fun to watch muhurat trading. मतलब पूरा एक तो माहौल बना रहता है अपने कंट्री में भी. Everywhere you can see crackers and festive dresses and every year I watch. Generally ये 5 to 7 के बीच में कहीं पे 1 घंटा होता है शाम में. And you get all the celebrities who are coming on the show. Celebrity मतलब शाहरुख खान वगैरह नहीं है, stock market celebrities. Okay, like राकेश झुनझुनवाला है and all these big people they'll come and have a word with the investors कि what they feel कि आगे क्या होगा, आगे के साल में कितना अच्छा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. जैसे हम बोलते हैं ना कि we are in year 2019 right now, तो वहां पे this is the calendar year. मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं पता है? संवत. संवत इज अ डिफरेंट कैलेंडर. हाँ, सो शायद ये हिंदू कैलेंडर है, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दैट, बट कुछ संवत 2000 एंड समथिंग उनका कुछ अलग ही कैलेंडर ईयर रहेगा. सो दे ऑलवेज डिक्लेयर संवत दिस मुहूर्त ट्रेडिंग ये टाइम पे हो जाएगा. सो दिस ईयर, इस साल की दिवाली पे श्री गणेशाय नमः आप कर सकते हो ड्यूरिंग योर मुहूर्त ट्रेडिंग. यू कैन टेक योर फर्स्ट ट्रेड ड्यूरिंग दैट डे ऑल्सो. ओके, राइट. सो गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन, जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, मैंने आपको बोला था ये सैटरडे संडे ऑफ, पब्लिक हॉलीडेज ऑफ. बाकी जनरल फीचर्स है, ये आपको ऑलरेडी पता है दैट इट्स एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट. दैट मीन्स देयर इज नो मिडलमैन दैट इंट्रोड्यूस बायर्स एंड सेलर्स. मैंने ब्रोकर के पास अकाउंट खोल दिया, सेलर ने ब्रोकर के पास अकाउंट खोल दिया. नाउ इज देयर एनी अदर मिडलमैन हु एग्जीक्यूट्स आवर ट्रेड? इन सिंपल वर्ड्स, कल मैंने 5 शेयर्स बाय किए थे कोटक महिंद्रा के. मैंने किसी को अप्रोच किया क्या, भैया 5 शेयर दिलवा दो ना जरा, ब्रोकर को. लेकिन वो तो मैंने शुरुआत में ही अकाउंट खोल दिया ना. डिड माई ब्रोकर इंटरवीन इन बिटवीन एज सच? फिजिकली इंटरवेंशन लगा या नहीं लगा? नहीं. ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो गया ना, यही तो पढ़ रहे अपन. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के कारण ब्रोकर का रोल एज गुड एज नलिफाई हो गया. ही नीड नॉट इंटरफियर इन बिटवीन. बट गो बैक टू योर, ये गुरु का मूवी का एग्जाम्पल बताया मैंने, जिसमें आउटक्राई बोला था ना मैंने शायद. आउटक्राई मतलब ऐसे चिल्ला के बोलते थे ये शेयर बाय करना है वो शेयर. वहां पे ब्रोकर का तो फिजिकल इंटरवेंशन लगता है. आजकल ब्रोकर का फिजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है ही नहीं. नेक्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. हाउ डू आई रियली नो हाउ मेनी सेलर्स आर देयर? टॉप 5 सेलर्स, टॉप 5 बायर्स, ऐसे पता चलते क्या मुझे क्या क्या प्राइसेस पे वो बाय करना चाह रहे हैं, क्या क्या प्राइसेस पे वो सेल करना चाह रहे हैं? अरे यस और नो. Yesterday I showed you ना how to do trading, जिसमें ना ऐसे कुछ तो एक स्क्रीन आ रही थी जिसमें यहाँ पे आ रहे थे बायर्स, यहाँ पे आ रहे थे सेलर्स, यहाँ पे आ रहे थे क्वांटिटी, यहाँ पे आ रहा था प्राइस. सेम. Isn't this very transparent? Absolutely. I know how many number of sellers are there. I know how many number of buyers are there. I know what is the current market price which is going on. So cheating का chances very less है. It's a very transparent system, right? एनोनिमिटी ऑफ ट्रेडिंग होता है. एनोनिमिटी ऑफ ट्रेडिंग क्यों? एनोनिमस समझते ना, नेमलेस ट्रेडिंग है ये. एनोनिमिटी क्यों है? कल मैंने 5 शेयर्स बाय किए, आप सबके सामने बाय किए. किससे बाय किए हमको थोड़ी ना पता है. शेयर्स मेरे अकाउंट में आ भी जाएंगे कल, आई डोंट नो फ्रॉम हुम. इट्स कंप्लीट एनोनिमिटी ऑफ ट्रेडिंग. ओके, ओनली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नोस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नोस, जहां से ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है. ओनली दे आर द वंस हु एग्जैक्टली नो इस बंदे से बाय किया. Otherwise no one knows. Okay, and last point हमने बोला जो मैचिंग ऑफ ऑर्डर्स होता है दैट इज ऑन द प्राइस टाइम प्रायोरिटी. प्राइस टाइम प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? प्राइस. यस्टरडे में बहुत उतावली हो रही थी, आई वांट टू बाय शेयर्स. टू विच टाइप ऑफ ऑर्डर डिड आई प्लेस यस्टरडे? मार्केट प्राइस. सो वेरी फर्स्ट प्रेफरेंस वाज गिवन फॉर प्राइस. प्राइस के बाद किसको प्रेफरेंस दिया गया? टाइम. एंड इसके थ्रू ऑर्डर हो गया मेरा मैच. हु मैच्ड इट फॉर मी? इट वाज अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक matching of system.
इज दिस ओके? यही बताया मैंने कल आपको. A very similar screen had popped up. Okay, so ये अपने को ऑलरेडी पता है. Let's not go ahead with this now. Okay, अच्छा ये बताया क्या मैंने आपको? डिस्क्लोज ऑर्डर क्वांटिटी. मैंने कुछ ऐसे छुपाया मैंने कल. 5 शेयर्स पूरे डिस्क्लोज किया ना. क्यों? 5 ही शेयर्स है ना. If I were to place an order for 5 crore shares or 5 lakh shares, then what I would have done? I would have disclosed few. कल का अपना डिस्कशन याद है ना? 1000, 1000, 100 ऐसे कर करके वो डिस्क्लोज हो जाएंगे. अदरवाइज कहने से बायर को पता चल सकता है that there is a single seller who is in desperation to sell और वाइस वर्सा. इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है डिस्क्लोज्ड ऑर्डर क्वांटिटी का. एप्लीकेबल फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, यस और नो? डिस्क्लोज क्वांटिटी का अपने को ज्यादा रेलेवेंस है या नहीं है? अपने को ज्यादा रेलेवेंस नहीं है बिकॉज आवर क्वांटिटी इटसेल्फ इज वेरी लेस. ओके, हैव यू आल्सो डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिड आस्क स्प्रेड? किया ना? What is the difference? Bid मतलब बेस्ट बाइंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस. इसके बीच का डिफरेंस है आपका बिड आस्क स्प्रेड. इनफैक्ट शायद इसी एग्जांपल के साथ हमने बिड आस्क स्प्रेड किया था. ओके, मार्केट इंडाइसेस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड. मेनली 2 मेजर मार्केट इंडाइसेस इज सेंसेक्स, निफ्टी. नाउ व्हाई मार्केट इंडाइसेस के लिए मैंने जो अभी डिस्कशन किया है वो फटाफट थ्रू द स्लाइड्स लेके जा रही हूं आपको. इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू ट्रैक द प्राइस मूवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी स्टॉक. इतने कल मैंने आपको बोला था हाउ मेनी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन सेंसेक्स, सॉरी ऑन बीएसई. बीएसई के ऊपर कितने शेयर्स लिस्टेड है? मोर देन 5000 शेयर्स. एनएसई के ऊपर कितने लिस्टेड है? मोर देन 1500 शेयर्स. डू यू थिंक आई विल बी इन अ पोजीशन टू ट्रैक ईच एंड एवरी शेयर? हाईली इम्पॉसिबल. Okay, so just to get a fair idea of the price of the market movement, we have to have an idea of what are the indices, right? ये भी बोला मैंने. Sensex is sensitivity plus index and Nifty is combination of national plus 50. National plus index लिखा है मैंने. National plus 50. We have written this down, but how is Nifty calculated? ये कल का अपना पूरा डिस्कशन. Only 1 shares, 2 shares, and then we talked about entire market capitalization concept. Okay, ये भी मैंने आपको बोला. बेस ईयर क्यों चाहिए? बेस वैल्यू क्यों चाहिए? So that everyone compares it with the same value, same base. उसके बाद we also talked about 5000 plus shares on BSE and Sensex में कितने उसमें से? Only 30 chosen stocks. वैसे ही if I talk about Nifty में NSE पे रफली कितने शेयर्स है? 1500 कंपनीज के अलग अलग 1500 कंपनीज के शेयर्स है एंड उसमें से रिप्रेजेंटेटिव कितना ले रहे हो? ओनली 50. बेस ईयर फॉर निफ्टी इज डिफरेंट देन सेंसेक्स. बेस ईयर फॉर निफ्टी इज 1995 एंड बेस वैल्यू चोजन इज हाउ मच? 1000. सेंसेक्स के लिए कितना था? सेंसेक्स के लिए बेस वैल्यू कितना था? 100. निफ्टी के लिए बेस वैल्यू कितना है? 1000. अब देखो बेस ही अलग है ना, इसलिए वैल्यूज तो अलग आएंगे. ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे 50 के अलग अलग शेयर प्राइस मूवमेंट, वहां पे 30 के अलग अलग प्राइस मूवमेंट्स. सो ऑलवेज इफ यू चेक यू विल फाइंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी. इफ आई टेक यू बैक टू दिस अपना मेन मार्केट पेज. अच्छा यहाँ पे भी दिख रहा है वैसे. Check this out. Sensex कितने में है? Roughly 35,000 something ना? Sensex was at 35,000 something. Nifty is at how much? Nifty is at 10,600 something. 10,604. And Sensex is at what? 35,352. क्यों अलग क्यों है? Why Sensex is at a different figure? Why Nifty is at a different figure? दोनों का बेस ही अलग है ना. निफ्टी का बेस कितना है? 1000 है. सेंसेक्स का बेस कितना है? 100 है. निफ्टी का बेस ईयर क्या है? 95 है. इसका बेस ईयर क्या है? 1979 है. अच्छा, जितना पुराना बेस, लॉजिकली जितना पुराना बेस उतना वैल्यू, जितना पुराना बेस उतना वैल्यू ज्यादा होगा ना. इट्स एज गुड एज yesterday if you remember I was telling you कि if I ask you कि मूवी के प्राइसेस, मूवी टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ गए क्या? आप क्या बोलेंगे? लास्ट ईयर तक तो 150 में मिलता था, अभी ज्यादा से ज्यादा 160 में मिलता है. आपका बेस ईयर नजदीक का है, 2 साल पुराना है.
माय नाना जी, वो क्या बोलते थे, 1 पैसा. सो दिस इज एज गुड एज 16,000 पैसा हो गया ना अभी ये. 160 रुपीज 16,000 पैसा. अब उनके लिए बोलो फटाफट, कहने से दिस वैल्यू इज गॉन अप ट्रिमेंडसली. वाई? उनका बेस ईयर बहुत पहले का है. जितना पुराना बेस ईयर उतना वैल्यूएशन ज्यादा होगा. एंड दैट इज ओनली रीजन वाई सेंसेक्स का वैल्यूएशन ज्यादा है ना, 35,000 है, वेयर एज निफ्टी इज अराउंड 10,000. सो इफ समवन आस्क्स यू क्यों निफ्टी एंड सेंसेक्स में अलग अलग क्यों है, 2-3 रीजंस. नंबर 1, इसका बेस ईयर है 79, इसका बेस ईयर है 95, इसका बेस वैल्यू इज 100, उसका बेस वैल्यू इज 1000. एंड नंबर 3, कंपनीज भी अलग अलग हो सकती है ना, एंड नंबर ऑफ कंपनीज भी अलग कम ज्यादा है. सेंसेक्स में नंबर ऑफ कंपनीज इज 50, उनका पूरा वैल्यूएशन, वेयर एज सेंसेक्स में 30 एंड निफ्टी में 50. सो उस वैल्यूएशन में भी थोड़ा बहुत फर्क आएगा. सो दैट इज वाई निफ्टी एंड सेंसेक्स वैल्यूएशंस विल बी डिफरेंट. यहां तक भी ओके? यस. मूविंग अहेड, निफ्टी एंड सेंसेक्स टॉप कंपनीज सिलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम मेजर सेक्टर्स, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट इंडेक्स इज लाइक अ मिरर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर मार्केट. ओके, अब एक सवाल आपको आना चाहिए, दैट निफ्टी में कितने स्टॉक्स है लास्ट टाइम? निफ्टी में कितने? 50. कल भी 50 थे, आज भी 50 है, कल भी रहेंगे 50 रहेंगे, नो डाउट अबाउट दैट. विच 50? Top 50. Top by market capitalization. Can this change? Yes. So could this happen that 50 to 50 है, but some stocks might come in this list of 50, some stocks might go out of this list of 50. तो ये रोज आते जाते रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है. Every day if Nifty starts rebalancing, that will be a problematic situation. So that is why when is Nifty or Sensex rebalanced, it is done on a semi-annual basis. मतलब क्या? निफ्टी का, इसको वर्ड क्या यूज कर रही हूं मैं, निफ्टी का कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन वर्ड क्यों बोल रही हूं? हाउ मेनी कंपनीज फ्रॉम विच सेक्टर्स, हाउ मेनी कंपनीज तो सेम ही है 50, बट विच कंपनीज इज चेंजिंग ऑन, हाउ फ्रीक्वेंटली इज इट चेंजिंग? इट इज चेंजिंग ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस. बेसिकली 6 महीने में एक बार पूरा ये चेंज होने वाला है. ऐसे होगा क्या? आज से सरप्राइज, आज से चेंज हो गया, ऐसे होगा क्या? नहीं होगा. वाई? एक्सचेंज गिव्स एन इंटीमेशन 4 weeks before the change. If you remember that I had discussed one more stock in our batch, and that was Britannia. Wait for this. There are big rumors right now. There is no fixed news. There are big rumors that Britannia might be included in Nifty 50. Might be included. If yes, good sign or bad sign? Good sign. It's a privilege to be in Nifty 50 stock. And अगर ऐसे हो जाता है तो शेयर प्राइस आइडियली बढ़ेगा. सो कीप अ ट्रैक ऑन दिस ऑल्सो. टिल नाउ इट्स अ रूमर, माइट कम अप इन निफ्टी 50. बॉम्बे से खबर आया है. ओके, राइट. सो क्लियर अबाउट दिस. रीबैलेंसिंग कब होता है बोला? 6 महीने में एक बार होगा. इंटीमेशन दिया जाएगा क्या? यस, 4 weeks इन एडवांस इसका इंटीमेशन दिया जाता है. ओके, नाउ दिस इज अगेन अमेजिंग कि चलो 50 तो 50 रहेगा, बट विच कंपनी विल कम इन, विच विल गो आउट, हु डिसाइड्स दिस? 6 महीने में एक बार तो चेंज होने वाला है, बट हु डिसाइड्स कि निफ्टी में ये अंदर आएगा, निफ्टी से ये बाहर जाएगा? एनएससी. एनीवन? एनी अदर आंसर? सॉरी, सेबी. 2 में से एक ही होना चाहिए आइडियली. सेबी इज लाइक द रेगुलेटरी अथॉरिटी. एनएससी तो एनएससी बोल रहा है, एनएससी बोलता है कि निफ्टी तो हमारा ही है, तो हम ही डिसाइड करेंगे लॉजिकली. So now it's a very difficult concept to digest. 100% attention. निफ्टी अभी तक हमने क्या बोला? निफ्टी इज नथिंग बट वन इंडेक्स. इंडेक्स इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली एंड मेक योर इमेजिनेटिव पावर सुपर स्ट्रॉन्ग. निफ्टी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. निफ्टी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. जैसे मैं साबुन बेचती हूं, मैं ये लैपटॉप बेच सकती हूँ, मैं ये मोबाइल बेच सकती हूँ, क्या मैं निफ्टी बेच सकती हूँ? आई डिफिकल्ट. अलग ही कंसेप्ट आ रहा है, फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आ रहा है. एक बार फिर से, मैं साबुन बेच सकती हूँ, मैं ये पेंसिल बेच सकती हूँ, मैं मेरा मोबाइल बेच सकती हूँ, मैं कल हमने कोटक महिंद्रा के शेयर्स बेच सकती हूँ. क्या मैं सेबी बेच सकती हूँ? नहीं नहीं, ये ज्यादा ही हो गया. हाँ, आई कैंट सेल सेबी.
ओके, कैन आई सेल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ले लो, एक्सचेंज ही लेके जाओ. आई कांट सेल. इफ यू हैव सीन दैट मूवी बंटी और बबली, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, क्या सेल किया था उन्होंने? ताजमहल ही सेल कर दिया था. एंड व्हेन आई सीन दैट मूवी आई थॉट दैट कुछ भी पागल जैसे फालतू दिखाया. आई जस्ट ट्राई टू गूगल इट एंड बिलीव इट और नॉट, दिस वाज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट्स. There was some Indian who claimed that ताजमहल उसका था and he had actually fooled a foreign guy and उससे पैसे लिए थे उसने एडवांस में कि ताजमहल बेचूंगे तुमको करके. ओके, सो दिस वाज टू मच. वैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ, वैसे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, शेयर्स बेच सकते हैं. ओके, लाइक आई टोल्ड यू दैट शेयर्स कौन सा बेचा मैंने कल, एग्जाम्पल कल बाय किया हुआ कोटक महिंद्रा के शेयर्स बेच सकती हूँ. एवरीथिंग इज ओके. माई क्वेश्चन टू इज, कैन आई सेल निफ्टी? कैन आई बाय निफ्टी? मैंने निफ्टी बाय किया. मैं जैसे अलग अलग कंपनी के शेयर्स बाय करती हूँ, मैं निफ्टी बाय कर रही हूँ. डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, यस और नो? पहली बार सुन रहे यार. निफ्टी अभी तक क्या करके सीख रहे थे? इट इज जस्ट एन इंडेक्स. इट इज अ मिरर ऑफ द एंटायर मार्केट. इट टेल्स अस अ नर्व ऑफ द मार्केट. इज इट गोइंग अप और इज इट गोइंग डाउन? बट नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. निफ्टी इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट. ओके, एंड ये प्रोडक्ट बाय किया जा सकता है, ये प्रोडक्ट सेल किया जा सकता है. आई हैव बॉट निफ्टी सो मेनी टाइम्स, आई हैव सोल्ड निफ्टी सो मेनी टाइम्स. ओके, कौन सी दुकान में मिलता है मैडम? स्टॉक्स की दुकान में मिलेगा क्या? आपको याद है क्या? बीएससी एनएससी क्या है? एक शॉप है या शॉपिंग मॉल है? शॉपिंग मॉल है, अलग अलग दुकान है इसमें. याद है क्या ये कंसेप्ट? एक में आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं, एक में आपको डिबेंचर्स मिल सकते हैं, एक में आपको म्यूचुअल फंड्स मिल सकते हैं, एक में आपको F&O मिल सकता है. व्हाट इज F&O? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. एंड आपको ये जो निफ्टी मिलेगा ना, ये F&O की दुकान में मिलेगा. ओके, सो यू कैन बाय फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी, यू कैन बाय ऑप्शन ऑफ निफ्टी, बिकॉज निफ्टी इज नॉट अ शेयर ना. निफ्टी इज नॉट अ शेयर, इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट. आप निफ्टी बाय और सेल कर सकते हो, बट इट इज वेरी रिस्की. बाय द वे, बाइंग निफ्टी, सेलिंग निफ्टी इज डैम रिस्की. एंड इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है. क्यों, कितना, क्या, उसके लिए आपको थोड़ा F&O का नॉलेज होना जरूरी है. बट फिलहाल ये कंसेप्ट डाइजेस्ट हो गया क्या? अभी थोड़ा सा क्या कंसेप्ट डाइजेस्ट हो गया? निफ्टी क्या है? अभी तक क्या पढ़ा? निफ्टी क्या है? निफ्टी इज एन इंडेक्स. निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर. इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. बट निफ्टी इज अ प्रोडक्ट. कैन वी बाय दिस प्रोडक्ट? यस. कैन वी सेल दिस प्रोडक्ट? यस. कहां पे मिलेगा? F&O की दुकान में मिलेगा. ओके, लॉजिकली अगर मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूं, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से, इट्स अ प्रोडक्ट. ये तो बोला समवन शुड ओन दिस प्रोडक्ट. मेरा है क्या निफ्टी? किसी का तो होगा ना निफ्टी. मैं बोल रही है प्रोडक्ट करके फ्लोट किया है, तो समवन शुड ओन इट. लॉजिकली हु शुड ओन इट? एनएससी. लॉजिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुड ओन निफ्टी. तो देखते हु डिसाइड्स विच कंपनी विल बी अ पार्ट ऑफ निफ्टी. इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखा है. इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. ये क्या है? ये कंपनी का नाम है. कंपनी का नाम क्या है? इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. बाप रे, इन सिंपल वर्ड्स क्या हो रहा है? देखो, इंडियन कंपनी है, सिंप्लीफाई करके बता रही हूं, ऐसे कुछ रेलेवेंस नहीं है, बट इंडिया की कंपनी है. एंड क्या बेच रही है? कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है? कौन सा सर्विस बेच रही है? ये इंडेक्स ही बेच रही है. दे आर सेलिंग और बाइंग इंडेक्स एज अ प्रोडक्ट. अब किसकी कंपनी है ये? इट इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ एनएसई ऑफ इंडिया. इन शॉर्ट, आपने समवन हैड सेड एनएसई. एनएसई इज करेक्ट आंसर, बट डायरेक्टली एनएसई है कि एनएसई की कोई ग्रुप कंपनी है. एनएसई की कोई ग्रुप कंपनी है. सो बेसिकली एनएसई इज लाइक द होल्डिंग कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है. ये विजुअलाइज हो पा रहा है? एनएसई इज अ होल्डिंग कंपनी. इसकी सब्सिडरी कंपनी कौन है? IISP, इंडियन इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड. इसके लिए आगे आ गया इंडियन इंडेक्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड. इसने कॉन्स्टिट्यूट किया है आपका निफ्टी एज अ प्रोडक्ट. ओके, एंड आप बाय कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, एंड दे ओनली डिसाइड कि कितने कितने शेयर्स, कितने कितने कंपनीज इसमें अंदर आएंगे, कितने कितने कंपनीज इससे बाहर जाएंगे. यहां तक भी ओके. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चल रहा है देखो. दे ओन दिस ब्रांड अग्रीड एंड दे मैनेज 67 इंडाइसेस अंडर निफ्टी ब्रांड. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, ध्यान से सुनो.
क्या बोला अभी तक लास्ट टाइम? ये IISL करके एक कंपनी है, कंपनी से ग्रुप कंपनी ऑफ NSE। NSE क्या था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सिंप्लीफाई करके बताती हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुना। ओके, सिंप्लीफाई करके बता रही हूं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी क्या है? IISL इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला है, प्रोडक्ट का नाम निफ्टी। ओके, एक बार फिर से, NSE तो सबको पता है, NSE की ही अपनी एक कंपनी है IISL कुछ तो बेचना पड़ेगा ना, कंपनी फ्लोट के कुछ तो बेचो खरीदो। क्या बेचती है खरीदती है? निफ्टी उनका प्रोडक्ट है, दे मेक इट अवेलेबल फॉर बाइंग एंड सेलिंग। बट निफ्टी फॉर अ कॉमनर इज व्हाट, एंड फॉर अस एज वेल, इट इज एन इंडेक्स, टेल्स अस इन विच डायरेक्शन मार्केट इज गोइंग। बट दोज हु नो इवन लिटिल बिट मोर अबाउट मार्केट, दे नो कि जैसे मैं शेयर्स बाय एंड सेल कर सकती हूँ, वैसे मैं ये पूरा इंडेक्स बाय एंड सेल कर सकती हूँ। आई कैन बाय निफ्टी, आई कैन सेल निफ्टी, आई कैन गो लॉन्ग ऑन निफ्टी, आई कैन गो शॉर्ट ऑन निफ्टी। मतलब कैन आई डू शॉर्ट सेलिंग ऑन निफ्टी ऑल्सो? आई डोंट ओन निफ्टी, लेकिन मैंने निफ्टी बेच दिया एंड बाद में नीचे जाने के बाद कवर किया। अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड। शॉर्ट सेलिंग ऑन निफ्टी इज ऑल्सो अलाउड। यहां तक ओके क्या? पक्का? अब क्या हो रहा है देखो, ये निफ्टी एज अ प्रोडक्ट तो दिमाग में घुस गया, पक्का? निफ्टी जैसे ही, अब हम क्या बोल रहे हैं, निफ्टी जैसे ही दे ओन हाउ मेनी इंडाइसेस? 67 इंडाइसेस अंडर द निफ्टी ब्रांड। अभी तक तो यार निफ्टी सिर्फ एक प्रोडक्ट था, अब बोल रहे निफ्टी तो ब्रांड है। मतलब क्या निफ्टी के अलग अलग ऐसे रहेंगे क्या? जैसे थोड़ा समझ लेते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्टोरल इंडाइसेस। क्या बोलते हैं? सेक्टोरल इंडाइसेस। बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो इंडेक्स, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT। क्या हो रहा है? अभी तक सिर्फ निफ्टी पता था। निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ ओनली वन सेक्टर और मल्टीपल सेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर। मल्टीपल सेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर, ओके। बट अज्यूम दैट शी सेज मेरे को कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ बैंक्स में मजा आता है ट्रेडिंग करने के लिए। I want to understand the nerve of our banking sector in India right now. ध्यान से, she is interested only in tracking banking sector. बोलते मेरे को कुछ नहीं लेना देना बाकी है, I am only going to trade in bank stocks. अब इसको एक पता करना है कि बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया कौन से डायरेक्शन में जा रहा है अभी। So will she track each and every bank which is listed on the exchange? Will that be maddening? That will be maddening कि हर एक शेयर कितने से ऊपर गया, हर एक शेयर कितने से नीचे गया। अगेन वो क्या बोल रही है, एक फिगर बताओ, एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर बताओ। व्हाट कुड बी द रिप्रेजेंटेटिव फिगर? कुड इट बी निफ्टी? कुड इट बी निफ्टी एज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर इफ शी वांट्स टू ट्रैक ओनली बैंकिंग सेक्टर? एक बार फिर से शी वांट्स टू ट्रैक ओनली विच सेक्टर? बैंकिंग सेक्टर। कैन शी ट्रैक निफ्टी इफ शी वांट्स टू ट्रैक ओनली बैंकिंग सेक्टर? नो। व्हाई? निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द सेक्टर्स इन द मार्केट ना, तो ये मजा ही नहीं उसमें। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रैक करना है? बैंक सेक्टर ट्रैक करना है। यहां तक भी ओके? पक्का? सो विच इंडेक्स इज शी गोइंग टू ट्रैक? शी इज गोइंग टू ट्रैक बैंक निफ्टी। इज दिस ओके? ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन ऑटो स्टॉक्स, सिर्फ उसको ऑटो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। वो क्या निफ्टी चेक करते बैठेगा? नहीं, तो वो क्या चेक करेगा? निफ्टी का ऑटो इंडेक्स वो चेक करेगा। यहां तक भी ओके? शी इज इंटरेस्टेड ओनली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो निफ्टी इंफ्रा करके एक अलग आता है। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल करके 4 दिए, ऐसे कितने थे बाय द वे? 67 थे ना।
So जैसे निफ्टी 50 है ना, वैसे बाय द वे निफ्टी 500 करके भी एक प्रोडक्ट है. निफ्टी 500 मतलब उसके अंदर कितने स्टॉक्स रहेंगे? 500. 500 कंपनीज का मिला के एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर बोल दिया है. हाँ, जैसे ये बोल रहा है फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है, यूएस में एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है फॉर्च्यून 500, वैसे अपना निफ्टी 500. ओके, दैट इज ऑल्सो एन इंडेक्स. अच्छा, बाय द वे बैंकेक्स क्या चीज होगी? जैसे बैंक निफ्टी है वैसे बैंकेक्स क्या होगा? सेंसेक्स का बैंकेक्स, बैंकिंग इंडेक्स. सो दिस इंडाइस विल कम अंडर बीएसई. आ रहा है समझ में? यस. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या पढ़ा अभी तक? एकदम बहुत भारी कंसेप्ट पढ़ा है अभी. क्या पढ़ा है? एनएसई इज द मेन कंपनी. सेम फ्लो कैन आई मेक फॉर बीएसई ऑल्सो? ये सेम फ्लो आई कैन मेक फॉर बीएसई. अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे एनएसई का बता रही हूँ फ्लो. एनएसई कौन सी कंपनी ओन करती है? आईआईएसएल. आईआईएसएल क्या ओन करता है? निफ्टी. निफ्टी इज व्हाट? कॉमनर के लिए, अपने लिए भी निफ्टी क्या है? कॉमनर के लिए ना अपने के लिए निफ्टी क्या है? इट्स एन इंडेक्स. इट्स एन इंडेक्स. इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर. यस और नो? निफ्टी इज अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर. लेकिन भारी लोगों को, अपने जैसे लोगों को और एक चीज पता है निफ्टी के बारे में. क्या? इट्स अ प्रोडक्ट. हु ओन्स दिस प्रोडक्ट? आईआईएसएल, विच इज अ ग्रुप कंपनी ऑफ एनएसई. कैन वी बाय और सेल निफ्टी? यस. कहां पे मिलेगा? F&O सेगमेंट में मिलेगा. यहां तक भी ओके? यस, पक्का. सो इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, निफ्टी के ये ऐसे ही आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा. एनएसई इज द मेन कंपनी. आईआईएसएल का फुल फॉर्म क्या था? इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड. डन? यस. चलो, सो सेक्टोरल इंडाइसेस का फंडा भी समझ में आ गया. सेक्टोरल इंडाइस ट्रैक्स व्हाट? ट्रैक्स अ स्पेसिफिक सेक्टर. ये भी एक सिर्फ लिख लो, सेक्टोरल इंडाइसेस. सेक्टोरल इंडाइसेस डैश दे ट्रैक द मूवमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक सेक्टर. सेक्टोरल इंडाइस डैश दे ट्रैक the movement of a specific sector. एंड एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हो, लाइक यू कैन राइट डाउन जस्ट वन एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी. ओके, डन? यस. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में अच्छा, यू वांटेड टू राइट इट डाउन वन और टू, ये वाला. ओके, डन ना? यस. सो ये जितने भी इंडाइसेस बोले, ये कहाँ के? देसी वर्जन है या फिरंगी वर्जन है? देसी वर्जन. ऑल इंडियन इंडाइसेस. जैसे इंडिया में होता है वैसे अदर कंट्रीज के भी अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस रहेंगे, उनका भी कुछ ना कुछ तो इंडाइसेस रहेंगे ही रहेंगे. सो वर्ल्ड इंडाइसेस, जस्ट आपको एग्जांपल बता रही हूँ.
जापान का इंडेक्स इज निक्केई, हांगकांग इज हैंगसेंग, जर्मनी डैक्स, फ्रांस सीएसई कैक भी बोलते हैं, यूएसए नैस्डैक. ये अलग अलग वर्ल्ड इंडाइसेस है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स हर एक कंट्री का जिनका भी एक्सचेंज है वो अपने को पता चल सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इज 1 2 एट द स्टार्ट ऑफ द डे. क्यों? बिकॉज इनका मार्केट अपने से पहले खुलता है. इनका मार्केट अपने से पहले खुलता है. क्यों? दे कम टू द ईस्ट ना, टाइम जोन. ओके, सो टाइम जोन के हिसाब से ये पहले खुलते हैं, फिर अपना खुलेगा, इसके बाद ये दोनों खुलते हैं, एंड एकदम एंड में सो अपना पूरा बंद. सो आई टेल यू रफली, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट रफली अपने यहाँ पे सुबह 8 के आसपास, सुबह 8 के आसपास रफली ये दोनों पहले दोनों मार्केट्स ओपन हो जाते हैं. प्लस माइनस 1 आवर, इट्स ओके, माइनस ही होंगे, प्लस नहीं होंगे. 9 के बाद इनमें से कोई भी नहीं खुलता है. जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन मार्केट्स अराउंड 1 PM दोपहर. सो अगर आप देखेंगे ना मार्केट में हमेशा एक मूवमेंट आ जाती है रफली एट 1 PM. ओके, पीपल से 1 बजे कुछ तो हो जाता है मार्केट में, जादू टोना, क्या होता है क्या पता क्या होता है. यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाता है. तो यूरोप का अपना क्या संबंध है? ब्रिटिशर्स चले गए ना, क्या संबंध है? सेम फंडा, ग्लोबलाइजेशन है. बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ हो गया तो अपने पे भी इंपैक्ट आने ही वाला है. ओके, यूएस इज द वन विच ओपन्स आफ्टर वी क्लोज फॉर द डे. ओके, अपने यहाँ पे शाम में रफली 7 के आसपास यूएस मार्केट ओपन हो जाता है. बट इज दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस? क्योंकि यूएस में रातों रात, मैंने आपको बताया था वो 2008 वाला सब प्राइम क्राइसिस, रातों रात वहां पे कुछ हो गया, क्या ऐसे नेक्स्ट डे ओपनिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस. सो दी इट्स राउंड द क्लॉक, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कोई ना कोई तो मार्केट ओपन है ही है. इफ यू चेक आउट द ग्लोबल टाइमिंग, राइट? ओके, सो दैट वाज अबाउट वर्ल्ड इंडाइसेस. एक SX40 करके और एक इंडेक्स है, दैट इज ऑफ MSCI. अगर आपको याद है MSCI के लिए MCX SX करके एक एक्सचेंज था. तीन एक्सचेंजेस बोला था ना मैंने. कौन से 3 एक्सचेंजेस बोले थे? एक था BSE, वन वाज NSE एंड वन इज MCX SX, दैट इज नथिंग बट MSCI. एंड जैसे BSE का है सेंसेक्स, NSE का है निफ्टी, वैसे MCI का है SX40. दैट इज देयर इंडेक्स, दैट्स इट. Okay, nothing different. So indices concept is very well clear. Okay, coming to one more important point, one more important concept. Quickly tell me, can I buy one share of any company? अलग concept चालू हो रहा है. Can I buy one share of any company? Yes. Can I buy 5 shares of any company? Yes. 10 shares of any company? Yes. Can I buy 5.5 shares of any company? No, 5.5 शगुन के तौर पे नहीं. Okay. Now if I want to buy Nifty, अब अपने को पता है ये शेयर्स बाय कर रही हूं, ये अब मैं बाय कर रही हूं निफ्टी. निफ्टी शेयर है या एक प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है. अब क्या मैं एक निफ्टी, अच्छा डोंट से बाय 1 शेयर ऑफ निफ्टी, दैट्स अ रॉन्ग वे टू से इट. बाय 1 निफ्टी बोलेंगे डायरेक्टली. एक निफ्टी बाय किया, कोई सा भारी लग रहा ना, एक निफ्टी बाय किया मैंने. ओके, कैन यू बाय 1 निफ्टी? कैन यू बाय 1 निफ्टी? यस, नो, या 5 निफ्टी, 10 निफ्टी. हाँ, अब ये क्यों ऐसे क्यों पागल जैसे डिस्कशन चल रहा है? अंडरस्टैंड, देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट साइज. ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉट साइज. लॉट साइज मीन्स व्हाट? मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी विच यू हैव टू बाय और मल्टीपल्स देयर ऑफ. एक बार फिर से, व्हाट इज लॉट साइज? मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी विच यू हैव टू बाय इफ यू वर टू बाय, और यू कैन ऑल्सो बाय इन मल्टीपल्स ऑफ लॉट साइज. मतलब क्या है? अब जो ये पॉइंट था ना, इसके लिए आंसर है कैन आई बाय 1 निफ्टी? नो. कैन आई बाय 5 निफ्टी? नो. कैन आई बाय 10 निफ्टी? नो. दैट इज द करेक्ट आंसर बाय द वे. You can't buy 1 Nifty. My next question is, can you buy 75 units of Nifty? Answer is yes. Okay, अब ये 75 क्या है? 75 is the lot size. मतलब क्या? आपको अगर निफ्टी बाय करना है ना, कम से कम 75 यूनिट्स ऑफ निफ्टी बाय करने पड़ेंगे. इन शॉर्ट, ये चिल्लर लोगों का काम नहीं है.
देखते कौन करेक्ट आंसर देता है. और 75 निफ्टी बाय करना है, मतलब 75 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? निफ्टी कितने में? वो सेंसेक्स है 10,600 ना. सुनो 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 सुनो, क्या बाय कर रहे हैं? निफ्टी बाय कर रहे हैं. निफ्टी का कुछ लेवल है क्या अभी? डू वी हैव अ लेवल ऑफ निफ्टी राइट नाउ? निफ्टी कितने में चल रहा है अभी? 10,604 में चल रहा है ना. इफ यू सी हियर, निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 10,604. इट्स एज गुड एज द प्राइस. अब ये प्रोडक्ट के जैसे देखो, 10,600 का एक प्राइस ऐसे पकड़ के चलो. सो इफ समवन कैन टेक आउट ऑन देयर मोबाइल कैलकुलेटर, 10,604 का प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर सकती हूँ क्या मैं? कह रहा है बाय 1 यूनिट ऑफ निफ्टी, 2 यूनिट्स ऑफ निफ्टी, मिनिमम कितना बाय करना पड़ेगा? 75 यूनिट्स ऑफ निफ्टी. कितना हो गया इसका? 7,95,000 ओनली. एक ट्रेड है, एक ट्रेड है. ओके, ये अपने बस की बात है ही नहीं. बट वेट, ये थोड़ा सा डेरिवेटिव का कंसेप्ट है बाय द वे. बट शैल आई गो जस्ट वन स्टेप हायर? समझ में आ रहा है ना अभी तक? कैन आई बाय निफ्टी, यस और नो? यस. 1 यूनिट ऑफ निफ्टी, 2 यूनिट्स ऑफ निफ्टी, नो. कितना? यू हैव टू बाय इट इन अ लॉट. निफ्टी के लिए लॉट साइज का कंसेप्ट आता है 75. क्विकली, कैन आई बाय 75, 150, 225, 300, 302? No, it has to be in multiples of 75. या तक ओके? तो फिर कोटक महिंद्रा बैंक 5 कैसे लिया आपने? वो तो 75 है ना. शेयर से ना ये, तो शेयर के लिए लॉट साइज कितना होता है? 1 is the lot size. 1 is the lot size. इसको क्या रेलेवेंस है? इसीलिए तो 5.5 नहीं ले सकते ना. इसीलिए तो 5.5 नहीं ले सकते. क्यों? लॉट साइज इज 1, सो यू कैन बाय इन मल्टीपल्स ऑफ 1. किसी ने पूछा क्यों नहीं ले सकते? यू शुड नो द आंसर. लॉट साइज इज 1, यू हैव टू बाय इन मल्टीपल्स ऑफ 1. यहां तक भी ओके क्या? पक्का? नाउ अंडरस्टैंड. अगर मैं निफ्टी बाय करना चाहता हूं, कौन से दुकान में निफ्टी मिलेगा? F&O की दुकान में निफ्टी मिलेगा. NSE बट F&O सेगमेंट में मिलेगा. मिनिमम कितना प्राइस मुझे बेयर करना पड़ेगा? 7,95,000 अप्रोक्सीमेटली. बट आई नीड नॉट हैव द एंटायर मनी राइट नाउ. मुझे इसका एक टोकन मनी भरना पड़ता है. पूरा पैसा भरने की जरूरत नहीं है. ये तो हार्डली कोई बाय कर सकता था फिर एक लॉट लेने के लिए. दैट्स अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ना, इन शॉर्ट. और मैंने आपको अभी बोला कि मैंने कई बार निफ्टी में ट्रेडिंग किया है. तो डू यू थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस 7,95,000 एट 1 शॉट? अभी तक इतना नहीं है हैसियत कि एक शॉट में ना एक लॉट बाय कर दिया. कितने में? 8 लाख. ऐसा अभी तक नहीं है. ओके, बट यू हैव टू पे अ टोकन मनी फॉर दैट. टोकन मनी डिपेंड्स, जनरली एक रफ फिगर बता रही हूं आपको, रफ कैलकुलेशन के लिए. इट इज रफली 10% ऑफ योर टोटल वॉल्यूम. मतलब 10% ऑफ दिस अमाउंट. 10% ऑफ दिस अमाउंट मतलब फिर भी कितना आएगा? फिर भी कमिंग आउट टू ऑलमोस्ट 80,000 रुपीज. 80,000 रुपीज आपको क्या करके रखना पड़ता है ब्रोकर के पास? टोकन मनी करके रखना पड़ता है. टोकन मनी सब समझते हैं. इसी को टेक्निकल वर्ड क्या है? मार्जिन मनी. सीए फाइनल में बड़ा काम आने वाला है. ये पूरा आपको आता है डिस्कशन सीए फाइनल में. बट कॉन्सेप्ट इज क्लियर. आज इसको कुछ मजा नहीं आ रहा है, बार बार जा रहा है. ओके, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इज ऑफ मार्जिन मनी. फॉर अ ले मैन व्हाट इज मार्जिन मनी? टोकन मनी. इतना तो आपको भरना ही पड़ेगा. उसके अगर आप ये नहीं भरते हो, आपको इसमें एंटर करने के लिए अलाउड नहीं करेंगे. इज दिस ओके? अच्छा, वाई मार्जिन मनी, ये क्यों जरूरत है, कौन कलेक्ट करता है, कौन से, ये सब अपन फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस में ही चले जाएंगे पूरा. अब भी अपन क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट. वो सब एडवांस्ड में आएगा. अभी फिलहाल इतना समझ लो. बट वी शुड नो दैट निफ्टी इज अ प्रोडक्ट. निफ्टी कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन व्हाट? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉट साइज. कंसेप्ट लिखेंगे, लॉट साइज. It is the minimum number of shares. It is the minimum number of shares
which can be, there is a minimum number of shares which can be bought / sold. अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ, जरूरी है कि शेयर्स ही होगा क्या? शेयर्स और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना, मैंने अभी बोलते बोलते शेयर्स बोल दिया, बट नॉट नेसेसरी शेयर्स, शेयर्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. सो minimum number of shares or any financial instrument which can be bought or sold and in multiples thereof, and in multiples thereof. Example करके क्या लिखेंगे? What is the lot size of Nifty? Lot size of Nifty is 75. पक्का क्लियर है लॉट साइज कॉन्सेप्ट? अच्छा, लॉट साइज का कॉन्सेप्ट सेकेंडरी मार्केट में कैसे आएगा बोलो? ये 75 वाला कौन से वाले दुकान में है? F&O में है. नॉर्मल सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट के लिए क्या है बोलो? सो राइट डाउन, फॉर शेयर्स इन कैश सेगमेंट. नाम क्या है उसका? कैश सेगमेंट. सो प्लीज अंडरस्टैंड. एक ही मिनट यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करना. जो मैं आपको बोल रही थी ना, अलग अलग दुकानें अपने शॉपिंग मार्केट में. एक बोलते हैं F&O, टेक्निकली बता रही हूँ, टेक्निकल वर्ड्स इज F&O सेगमेंट, एंड जहां पे शेयर्स मिलते हैं, जहां पे हम शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, उसको बोलते हैं हम कैश सेगमेंट. जहां पे वी बाय एंड सेल शेयर्स, दैट इज नोन एज कैश सेगमेंट. सो लॉट साइज क्या लिखा है मैंने अभी? कुछ लिखा है? लॉट साइज फॉर शेयर्स इज 1 इन द कैश सेगमेंट. Now wait, the last concept of lot size only, but lot size in primary markets now. Primary market क्या था? Primary market क्या था? IPO था. मैडम बैच खत्म होने को आई, आपने IPO के बारे में कुछ भी नहीं बताया. कल से IPO ही अपना. So I thought of starting with the secondary market concepts and then going in flashback. Secondary market में आया कहाँ से? Because IPO आया था ना. And tomorrow we are going to discuss mainly about IPO markets. Tomorrow, day after tomorrow का भी half of the part maybe would go into IPO. And मेरे दिमाग में से कि last day का कुछ last half an hour roughly, shall I teach you basics of how to decide which share to buy, which share to sell? एकदम basics. चलेगा? So एक rough idea तो आ जाएगा. उसमें advanced techniques जो होते हैं पूरे, जिसको हम बोलते हैं fundamental analysis and technical analysis. So fundamental analysis is more on reading balance sheets, reading profit and loss, reading the cash flows. ये थोड़ा सा advanced version में आएगा. So इसीलिए अभी का जो अपना बैच है, that is basics of stock market, and we will introduce a level 2 for this, जिसमें it's going to be complete balance sheet analysis, P&L analysis, but we'll try to again simplify it down to whatever we have done right now. बैच शुरू होने से पहले I'm sure आपको बहुत कम नॉलेज, some might be trading, but others के लिए काफी कम नॉलेज होगा, but still I guess till date we have grasped almost around easily 50 plus concepts. 50 plus तो easily जा चुके होंगे अभी तक अपने. ये भी आराम से समझ में आया ना? वैसे ही अपन सेकंड लेवल में भी बैलेंस शीट एनालिसिस, P&L एनालिसिस एकदम आराम से, कैश फ्लो एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या किया जाता है वो अलग से अपन लेने वाले हैं. बट दैट विल बी अ सेपरेट. अगेन लेट्स सी, मैंने भी खुद नहीं चॉकआउट नहीं किया है, कितने दिन लगेंगे क्या वो बताऊंगी मैं. राइट. सो प्राइमरी मार्केट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, आईपीओ के बारे में जब हम बात करते हैं, इफ यू वर टू अप्लाई फॉर आईपीओ, डू यू रिमेंबर मैंने आपको बोला था इस साल में एक आईपीओ आएगा पतंजलि का. अच्छा, वैसे कई सारे आईपीओ आएंगे, जस्ट वन एग्जांपल, वन ऑफ देम इज पतंजलि. नाउ यू से आई वांट टू बाय पतंजलि शेयर्स. बाबा रामदेव ने मुझे बताया कि शेयर्स बाय करो, अच्छा रहेगा. कितने शेयर्स बाय कर सकते हो? कैन आई बाय 1 शेयर? Can I buy 1 share? No. Why? Because in primary market, in IPO also the concept of lot size comes into picture. And यहाँ पे lot size 1 share नहीं होता है. Never. In IPO, in a primary market, there will be a basic defined lot size. अच्छा, ये नहीं, जरूर नहीं कि 1000 ही होगा, जरूर नहीं 100 ही होगा. एवरी कंपनी चूजेज इट्स लॉट साइज. आई विल रिपीट, एवरी कंपनी चूजेज इट्स लॉट साइज.
बट लॉट साइज चूज करने का इंपैक्ट क्या होगा, ध्यान से समझ लो. इफ आई वर टू इन्वेस्ट इन एन आईपीओ, मान के चलो पतंजलि के शेयर्स में मुझे इन्वेस्ट करना है इन द आईपीओ, तो हाउ मच शुड बी द लॉट साइज. इसके लिए ये मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लॉ, लेट मी रिपीट, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ मैं. दैट रफली मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको लगता है आईपीओ के लिए, रफली 15,000 के आसपास आ जाता है फिगर, रफली. ओके, अब देखो, अगर पतंजलि प्राइसेस इट्स शेयर, पतंजलि ने बोला हमारा ना एक शेयर का प्राइस 750 रुपया आएगा, जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है बाय बाय. ओके, क्या डिसाइड किया पतंजलि वालों ने? व्हाट शुड बी आवर लॉट साइज, व्हाट शुड बी आवर इशू प्राइस? इशू प्राइस विल बी 750, जिसको लेना है 750 में लेना पड़ेगा. देन टेल मी लॉजिकली व्हाट शुड बी देयर लॉट साइज? 20 शुड बी देयर लॉट साइज. लॉ है क्या? कोई लॉ नहीं है, मैं आपको बता रही हूं प्रैक्टिकली विथ पास्ट एक्सपीरियंस. जनरली 15,000 के आसपास मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है इन एन आईपीओ. सो लॉट साइज चेंज क्यों होगा? फॉर एवरी कंपनी लॉट साइज इन एन आईपीओ विल बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज प्राइस अलग रहेगा ना, प्राइस अलग हुआ तो लॉट साइज अलग हो जाएगा. दैट इज हाउ इट वर्क्स इन एन आईपीओ. बट क्विकली टेल मी, मैंने बोला यार 15,000 रुपए तो नहीं है मेरे पास, आई कांट इन्वेस्ट इन पतंजलि. कैन आई इन्वेस्ट इन पतंजलि आफ्टरवर्ड्स? कब आफ्टरवर्ड्स? Once it gets listed on the secondary market, once it gets listed on BSE, once it gets listed on NSE, उसके बाद लॉट साइज कितना होगा? 1. Again it boils down to 1. So यहाँ पे लॉट साइज ऑफ 20 will remain only for the purpose of IPO. यहाँ तक भी ओके? पक्का? Yes, no doubt in this one? Yes. So concepts wise इधर रुकते हैं. आज बहुत दिन से रिविजन नहीं किया. एक लास्ट 5 minutes only. 5 minutes चलेगा ना? फटाफट रिवीजन कर लेंगे. लिखा है क्या सबने लाइन से कंसेप्ट अच्छे से? आज अपना वो रिवीजन वाला बंदा गायब हो गया है जो हमेशा बताता है. चलो रैंडम रिवीजन लेते हैं क्या अदरवाइज? हाँ, एसी बंद करूं. रैंडमली टेल मी एनी कंसेप्ट, एनी 10 कंसेप्ट्स विल रिवाइज क्विकली, एकदम रैंडम बेसिस पे 10 कंसेप्ट्स बोलो फटाफट. फर्स्ट कंसेप्ट एलटीसीजी. एलटीसीजी क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या बोलो? स्टॉप लॉस. अच्छा, एलटीसीजी वाज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म क्या था? मिनिमम 1 ईयर. कितने तक एग्जेम्प्ट है? 1 लाख तक एग्जेम्प्ट है. उसके ऊपर 10%, ये याद है. स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस बहुत डेंजर कंसेप्ट बोला इसने डायरेक्टली. स्टॉप लॉस वाज अ टाइप ऑफ ऑर्डर. क्यों लगाते अपन स्टॉप लॉस? अज्यूम आई हैव बॉट एट 100 एंड ये ऊपर ऊपर जा रहा है, नो प्रॉब्लम. मुझे डर कब लगता है? जब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है. आई से माय मैक्सिमम लॉस बेरिंग कैपेसिटी इज 90. अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया एट 90, इट टचेस 90, ट्रिगर प्राइस. कंसेप्ट पढ़ा था हमने. सो लगाया है अपने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाया तो क्या हो जाएगा? द मोमेंट इट हिट्स 90 क्या हो जाएगा आपका? ट्रिगर प्राइस ट्रिगर हो जाएगा. एंड द वेरी नेक्स्ट माइक्रो सेकेंड जो कुछ भी प्राइस रहेगा, कल हमने देखा ना वो पूरा, आपको याद है क्या? कल का मेरा कोटक महिंद्रा का ऐसे अलग अलग आ रहा था. आई कंपेयर्ड इट विथ अमेजॉन ऑल्सो. वहां से निकल चुके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए. उसमें बहुत टाइम डिफरेंस रहता है ना. लेकिन कल के अपने इसमें 1 माइक्रो सेकेंड का भी डिफरेंस था क्या? याद है क्या? कल का अपना ऑर्डर 1 भी माइक्रो सेकेंड का फर्क था क्या इन सभी में? नॉट इवन 1 माइक्रो सेकेंड डिफरेंस. इसीलिए बोलो फटाफट, ट्रिगर प्राइस में एंड आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्राइस विल बी जनरली सेम. दैट वाज अबाउट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर. स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी हो सकता है क्या? जिसमें और एक लेवल डिफाइन करना पड़ता है आपको. एक होता है आपका स्टॉप लॉस प्राइस, एक होता है आपका हाँ ट्रिगर प्राइस, और लिमिट प्राइस भी बताना पड़ता है ना. स्टॉप लॉस प्राइस, ट्रिगर प्राइस, लिमिट प्राइस. अच्छा, ट्रिगर प्राइस के ऊपर लिमिट प्राइस रखो या ट्रिगर प्राइस के नीचे लिमिट प्राइस? ट्रिगर प्राइस के नीचे लिमिट प्राइस होगा. सो इट्स जस्ट एक्टिवेट यहां पे हो गया. अब एक्टिवेट होने के बाद द मोमेंट इट हिट्स हियर, यहां पे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा. याद है? यस. एनी अदर फंडा? शेयर ऑक्शन पढ़ा था हमने. शेयर ऑक्शन कब होता है? मैंने शॉर्ट सेल किया एंड बाद में कवर करना भूल गई या फिर
मेरे को मिला ही नहीं, वो सर्किट लगा हुआ था, या फिर दूसरे डीमैट अकाउंट में था, मुझे पता ही नहीं था. So that is why it got auctioned. Who participates in the auction market? Broker on my behalf. कितने बजे होता है ये? 3:30 से लेके 4 बजे तक होता है. अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो IEPF में चला जाता है, मुझे नहीं मिलेगा. Remember this also, no? Yes. Any other funda? Sorry? Short sell. Short sell. When do I do a short sell? Whenever I am bullish or whenever I am bearish? Whenever I am bearish. Do I go long or do I go short? I go short. Short मतलब क्या होता है? Sell first, buy later. Okay? One more. Circuit filters and circuit breakers. Circuit filter generally कितने परसेंट के लगेंगे? Very common. 5%, 10%, 20%. Okay. Is it like a barricade? Barricade है. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर सर्किट. नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लोअर सर्किट. अपर सर्किट के ऊपर एक दिन के अंदर शेयर जा सकता है, नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता है. It will stop there. If you remember, upper circuit is characterized by all buyers and no sellers. याद है ना? Upper circuit is mainly characterized by all buyers, no sellers. But lower circuit is characterized typically by all sellers and no buyers. That was concept of upper circuit, lower circuit. But मैंने आपको बोला सर्किट लग ही नहीं सकता है, कितना भी ऊपर जाने दो, कितना भी नीचे आने दो. 2 केसेस में, 2 एक्सेप्शंस में. द कंपनी शेयर इज ऑल्सो ट्रेडिंग इन F&O सेक्शन. तो क्या हो जाता है? बैरिकेड हिट कर दिया, बैरिकेड निकाल दिया, आगे जाने दो. आगे हिट किया, बैरिकेड निकाल दो, आगे जाने दो. पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज द फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग. उस दिन भी कोई भी सर्किट फिल्टर, कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं होता है. जैसे एक स्टॉक के लिए सर्किट फिल्टर होता है, वैसे मार्केट के लिए बोलते हैं मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर. मार्केट के लिए भी अपर ब्रेकर लग सकता है, लोअर ब्रेकर लग सकता है. आई गिवन यू 2 एग्जांपल्स. अपर ब्रेकर वाज व्हेन, कौन सा एग्जांपल बोला था अपर ब्रेकर लगा था मार्केट के लिए? कांग्रेस गवर्नमेंट ना, कांग्रेस गवर्नमेंट केम इनटू पावर सेकंड टाइम. एंड लोअर ब्रेकर कब लगा था? सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे. ओके. बंद हो जाता है क्या मार्केट, या हॉल्ट हो जाता है? हॉल्ट हो जाता है. कब, कितना, उसके लिए हमने पूरा एक टेबल पढ़ लिया था. इज दिस ओके? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? आई विल सी यू टुमारो फॉर द IPO कॉन्सेप्ट. कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है. सो सी यू टुमारो.